नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं नेशन नाउ पर हैं और नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा और हमेशा हम लोग सच के साथ खड़े हैं सर, ये याद रख लीजिएगा। हिंदुस्तान और सच, दैट्स इट। इंडिया फर्स्ट, एंड ऑफ स्टोरी एंड द ट्रूथ। आप सब लोगों को नेशन नाउ की पूरी टीम की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। और इसके पहले कि हम प्रोग्राम की शुरुआत करें, भाई वो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, इट विल बी नाइस एंड आई प्लीज डू सेंड योर कमेंट्स। नहीं सर वो भूल गए, मुझे नहीं लगता आज वो घंटी बजाने वाला है कोई वहाँ से। घंटी बजाने वाले शायद आज लीव पर हैं, पता नहीं। Captain Spock is there. Captain Spock usually is very particular about these things. जो भी है, you know, I'm the one thing which is I'm very really and truly happy about today is to see Mr. Modi's pictures with the Cypriot president. Yes. Mr. Nico Christodoulidis. Yes. Christodoulidis, that's his name. I still remember in Delhi there is an Archbishop Makarios Mag. Archbishop Makarios used to be the president of Cyprus, the Nicosia. So today the Prime Minister was there in Nicosia and they signed a new protocol, MOU, etc. And Modi ji was given the highest honor that Cyprus can ever give to anybody, which is absolutely fantastic. Fantastic. For an Indian PM. और सबसे बड़ी बात क्या है? This was a message that is Mr. Nico Christodoulidis, the president of Cyprus, felicitating the Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi, with the highest award that Cyprus has to give. And that was a message, एक संदेश गया किसके पास? तुर्की के पास। तुर्की के पास अर्दोगान साहब के पास। That India will now have stronger relations with Cyprus, with Greece, with Armenia, with Saudi Arabia and Egypt. All the people who are opposed to a resurrection of the Ottoman Empire. जनाब प्रेसिडेंट अर्दोगान जो हैं वो चाहते हैं कि ऑटोमन एम्पायर जो है, खलीफा की जो एम्पायर थी, जो ओल्ड कैलिफेट, he wants a return to the old caliphate. That's what he wants, and he styles himself after Suleiman the Magnificent. I'm not joking. He really does. To keep your flock together, you have such dreams and ambitions that can never be accomplished in this lifetime. But it's a great move. The three-nation visit of Prime Minister Modi, it is very well placed. Going to Canada for the G7, fantastic. Cyprus and after the Croatia, it's great things. It's very planned. As we sent the 7 delegations to around 36 countries, earlier 55, now 36, and they did a very good job, which getting support from all of them against and asking them, and they in fact gave a statement against terrorism that we need to fight terrorism. और सबसे बड़ी बात ये है कि साइप्रस जो है ना, बिल्कुल सर, साइप्रस शुरू से आज तक भारत के साथ खड़ा रहा है। Yes. ये भी आपको बता दूं। बिल्कुल। And unfortunately it was neglected. The last prime minister to visit Cyprus was 22 years ago. After that has been Mr. Modi, which is fantastic. And I think we should recultivate relations with people like that, and that will be absolutely wonderful, really and truly wonderful. और दूसरी चीज जो क्या है, वो फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान के He was not. वो मैं ढूंढता रहा सर, मैं ढूंढता रहा वो यूएस आर्मी डे परेड में वो नहीं मिले। Never invited. मुझे मिले ही नहीं। फिर उसके बाद व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट आई, हमने तो बुलाया ही नहीं था व्हाइट हाउस को, आपने आर्मी डे परेड में तो नहीं बुलाया था। हाँ वो अभी अमेरिका में हैं। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि व्हाइट हाउस में उनको इन्वाइट नहीं किया गया। उनको कहा कि भाई सेंटकॉम में, सेंट्रल कमांड में आप जाकर के मिल लीजिए अपने काउंटर पार्ट से, जितने भी फौजी हैं उनके साथ आप। वो एक जनरल साहब हैं, वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान इज अ फेनोमिनल अलाई अगेंस्ट टेररिज्म। जबरदस्त सर। इट इज लाइक सेइंग दैट अजमल कसाब was the greatest campaigner against terrorism. कहने का मतलब यही हुआ ना। Well, exactly. जैसे हाफिज सईद साहब जो हैं, उनको कोई आकर के बना दे भाई आप चेयरमैन बनो, आप यूनाइटेड नेशंस के एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के आप चेयरमैन बन जाइए। तो वही पाकिस्तान के साथ किया गया है। बीजेपी का यही कहना है कि Congress has to take a stand whether you're going to be anti-army against what the army's official statement is, or you're going to listen to the Pakistani propaganda. Now all this, what BJP believes, the Congress is espousing the cause of Pakistan agenda being sent out here. Whatever they want to speak, it's being replicated out here, and that is, they said, you're speaking against the army. प्रदीप जी, मैं एक छोटी सी बात मैं दोबारा रखना चाहता हूँ, ये मैं 10 बार पहले भी बोल चुका हूँ।
ये कांग्रेस का एजेंडा नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं। ये क्या है कि राहुल गांधी जी के आसपास कुछ ऐसे सलाहकार हैं जो उनको गलत एडवाइस कर रहे हैं। ये कांग्रेस का एजेंडा नहीं है। अगर आपको असल में कांग्रेस का एजेंडा सुनना है तो राहुल गांधी की पुरानी स्पीचेस सुनिए, या फिर इंदिरा जी को सुनिए, या फिर आप अभी शशि थरूर को और सलमान खुर्शीद को सुनिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कांग्रेस ये असल में है क्या। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जयराम रमेश साहब जो हैं, इनको बीजेपी ने भेजा है वहां पे कांग्रेस की ऐसी तैसी करने के लिए। अब जयराम रमेश साहब से ये सवाल पूछा जा रहा है कि सर आप सबसे ज्यादा उछल कूद कर रहे थे ऑन द सो कॉल्ड यू नो मिस्टर व्हाट्स हिज नेम, मुनीर का क्या नाम है, आसिम मुनीर, हाँ वो जो है वो ही इज द चीफ गेस्ट एट दी आर्मी डे परेड। और वैसे भी बाय द वे आर्मी डे परेड होती नहीं है वहाँ पे अमेरिका में। दिस वाज जस्ट मिस्टर ट्रम्प्स ग्रेट ड्रीम। एंड इफ यू सॉ, आई डोंट नो वेदर यू सॉ इट, यूएस आर्मी डे परेड में द army was not even marching in lockstep, but then that's an internal issue of what Trump is and what everybody else is. Millions of people came out in cities all over the United States of America to protest against Trump, and they say this was also the army's way of sending a message across to Trump that, hey, listen, we are not something that you can play around with. Anyway, but that's their internal issue. It's got nothing to do with us. But I could not locate Field Marshal, the so-called Field Marshal Asim Munir over there in the Army Day Parade. In any event, let's go straight across to our guests. We have a wonderful, wonderful panel today. We have our old friend Sameer Bhagre Sahab of the BJP. Sameer Bhagre Sahab BJP के इस वक्त हमारे साथ हैं। समीर भागरे साहब नमस्कार। नमस्कार। How are you sir? जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार। हेमंत कामले साहब of the Maharashtra नवनिर्माण सेना। How are you sir? हेमंत कामले साहब कैसे हैं आप? नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार सर। And Suresh Chandra Rajan साहब of the Congress Party. Lovely to see you again sir. Absolutely wonderful. पिछली मर्तबा हम लोगों ने इनको देखा था कि प्रोटेस्ट करते हुए वो जो कुर्ला में जो मदर डेयरी है उसको जिस प्रकार अडानी जी को दे दिया गया है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए सुरेश चंद्र राजन जी जबरदस्त काम कर रहे हैं आप। Absolutely wonderful. थैंक यू सर। But let's talk about सुरेश चंद्र राजन जी। मैं पहले आपसे शुरू करता हूँ। क्या है कि अब वो जो गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन आती है कास्ट सेंसस को लेकर के, वो भी आ गई है। कास्ट सेंसस को लेकर के वो 2 पार्ट्स में होने वाला कास्ट सेंसस, एंड बिकॉज इट विल बी डिजिटल, पहली बार ऐसा होगा कि 9 महीने के अंदर अंदर जो है कास्ट सेंसस का पूरा रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आपको तो बहुत खुश होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है सुरेश चंद्र राजन जी। ये तो आपकी डिमांड थी, राहुल गांधी जी की पिछले 3 साल से डिमांड थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और अब जातीय जनगणना का केंद्रीय सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन भी आ गया है। सुरेश चंद्र राजन जी बताएं सर। सबको नमस्कार जी। और राजीव जी, आपने सही कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जाति न्याय जनगणना करने का निर्णय लिया, उस निर्णय का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी की ये डिमांड थी कि जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए और लोगों को ये देश के सामने वो डेटा आना चाहिए कि कौन से जाति के कितने लोग हैं, और जिसके आधार पर उस जो डेटा अवेलेबल होगा उसके आधार पर लोगों के लिए अलग अलग योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करते समय या वो योजना बनाने के लिए उसका उपयोग हो सकता है। और जाति के आधार पर जिनकी आबादी है उतना उनको हक मिलना चाहिए, ये सोच लेकर राहुल गांधी जी ये मांग करते थे। और हमें खुशी है कि सरकार ने जाति न्याय जनगणना करने के और करीब लेके जाने का काम किया है, तो हम इसका स्वागत करते हैं सर। जी राजन साहब, बात यह है कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी, मोदी साल के 11 साल बेमिसाल होने के बाद भी खड़गे साहब आज भी आरोप लगा रहा है कि अमीर आबाद हो रहा है, अमीर आबाद हो रहा है और गरीब बर्बाद हो रहा है इस देश में। यह खड़गे साहब का आज का स्टेटमेंट है। तो ये किस प्रकार ये दरार बढ़ते जा रहा है खड़गे साहब के हिसाब से, तो सच्चाई क्या है? 4th बिगेस्ट इकोनॉमी, 11 साल बेमिसाल, और इतना बड़ा लिस्ट बीजेपी सब जगह घर घर पहुंचा रहे अच्छे कामों का। सुरेश चंद्र राजन साहब। प्रदीप जी देखो, मोदी सरकार ने जाति न्याय जनगणना करने का निर्णय लिया जो जनता के हित में था, उसका कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया। लेकिन मोदी सरकार की जो नीति है वो भांडुलदारों को हित में ध्यान में रखे हुए काम करने की नीति है, उसका कांग्रेस पार्टी शुरू से विरोध करते आई है सर। और आपने देखा होगा कि आज
मैं देश की नहीं, आपको मुंबई और महाराष्ट्र की बात करूंगा। धारावी रिडेवलपमेंट के नाम पर आपने देखा होगा, एक 600 एकड़ जमीन का रिडेवलपमेंट करने के लिए उसके बदले में वो 600 एकड़ की लैंड तो आप अदानी को देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अलग से 550 एकड़ की जमीन भी अदानी को देने का काम करते हैं। और जो लोग धारावी में रहते हैं, जिनकी वो उपजीविका या उनका क्या बोलते हैं इनकम जनरेशन का जो उनका सारा का व्यवसाय वहां पे है, उन सारे लोगों को आप अलग अलग मुंबई के बाहर डंपिंग ग्राउंड में, कचरा डेपो में आप उनको रिहेबिलिटेशन करना चाहते हैं। तो इस तरह की जो नीति है, ये आपको क्या लगता है कि ये इस तरह की सरकार की नीति ये अमीर को और अमीर बनाने की है या गरीब को विस्थापित करने की है? इसलिए कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती है 11 साल में मोदी सरकार के नेतृत्व में जो जो योजना बनाई गई, जो जो प्रोग्राम आए, वो सारे प्रोग्राम भांडवलदारों को और अमीर बनाने के प्रोग्राम है सर। तो आपके मुताबिक जहां तक के धारावी रीडेवलपमेंट का प्रश्न है, ये धारावी रीडेवलपमेंट वास्तविकता में धारावी के लिए नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये असल में अडानी जी के लिए। सर मुझे आप एक बात बताइए, धारावी में लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं। अभी जो ये लोग स्कीम लेके आ रहे हैं, लगभग 70,000 लोगों को रिहाब करने की बात करते हैं। तो बाकी के सारे लोग जो एलिजिबल है, नॉन एलिजिबल है, इन लोगों को आप मुंबई के बाहर फेंकना चाहते हैं। तो क्या ये धारावी रिडेवलपमेंट की स्कीम जो है वो धारावी करो के पुनर्वसन के लिए है कि अदानी को प्रस्तापित करने के लिए है? सर ये हमारा सवाल है सर, आपके माध्यम से इस राज्य की सरकार को और देश की सरकार को। लेकिन आप ये बताएं सुरेश चंद्र राजन जी, सॉरी, उसके बाद मैं सीधे हेमंत कामरे जी के पास जाऊंगा एंड आफ्टर समीर वाकरे साहब कैन कम इन विद हिज ओन एनालिसिस ऑफ द एंटायर सिचुएशन। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये क्या है कि वर्षाताई गायकवाड़ के आने के बाद, वेरी फ्रैंकली और बहुत फ्रैंकली मैं आपसे बोल रहा हूं, और ये बात मैं ना जाने कितनी मरतबा बहुत पहले भी बोल चुका हूं, जब से वर्षाताई गायकवाड़ आपकी MRCC की प्रेसिडेंट बनी है और उनको 1 साल हो चुका है, अब उनका दूसरा साल शुरू हो गया है। 2 साल जी, 2 साल हो गए, चलिए 2 साल हो गए, 2 साल उनके हो गए हैं। जब से वो आई हैं तभी से कांग्रेस ने इसको अपोज करना शुरू किया है, कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू किया है। ये क्या बात है सर? वो पहले जो कांग्रेस के लोग थे वो इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे थे? सर बताएं जरा। सर अगर धारावी रिडेवलपमेंट का जो ओरिजिनल जो प्लान था, जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पास हुआ था, और वो अगर प्लान को आप देखेंगे तो वो एक धारावी के लोगों को ओरिएंटेड प्लान था, जो सबसे बेस्ट प्लान था। उस वक्त हम चाहते थे कि वो सरकार इस प्रोजेक्ट को रिडेवलपमेंट करे, और उसके लिए कांग्रेस ने जो बनाया हुआ प्लान था उसके मुताबिक चल रहा है, इसलिए हम लोग उसका समर्थन करते थे। लेकिन उसके बाद आए हुए देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने जब अदानी को ये पूरी तरह से सरेंडर होने का काम किया, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में सब कुछ अदानी के लिए काम करने का शुरू किया, उस वक्त जाके, और जब कांग्रेस पार्टी को, वर्षाताई के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगा कि ये लोग धारावी के लिए काम नहीं कर रहे, धारावी के लोगों के लिए ये स्कीम योजना नहीं ला रहे हैं, ये अदानी को और अमीर बनाने के लिए है, इसलिए हम लोगों ने जोरदार इसका विरोध किया, संघर्ष किया। और हमारा संघर्ष जब तक धारावी में रहने वाला इंसान, धारावी में रहने वाला धारावीकर को धारावी में घर नहीं मिलता है, तब तक हमारा संघर्ष और भी तीव्र तरीके से होगा सर। राइट, सो लेट मी गो अक्रॉस टू हेमंत कामरे साहब। हेमंत कामरे साहब, क्या है कि the thing which is occupying just about every news channel or was occupying every news channel's time, वो ये था कि क्या राज ठाकरे साहब और उद्धव ठाकरे जी एक बार फिर वापस आ रहे हैं? Is there going to be a merger of the two parties? What is going to happen? क्योंकि राज ठाकरे साहब ने इस पर कुछ नहीं बोला है अभी तक, he has not said a word। और उनकी अभी मीटिंग हुई है देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ, तो क्या हम ये समझें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे सेना में अब विलय होने की कोई भी संभावना नहीं है? सर हेमंत कामरे साहब। नहीं, पहले तो ये जो गठबंधन और इसकी जो बातचीत है वो बहुत ही हायर लेवल पर चल रही है, जो भी बात होते हुए। देखिए, 2 अलग अलग पार्टियां हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना। वो 2 पक्ष के जो प्रमुख है वो 2 भाई भी हैं, तो जो भी बात होगी वो दोनों करेंगे।
फडणवीस साहब से जो उनकी मीटिंग हुई वो किस बात पर हुई, किस मुद्दे पर हुई, इसका कोई जानकारी हमें नहीं है, मुझे तो नहीं है। तो अभी इस बात पर मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा जी। जब इस तरह की कोई बात चलेगी तो जरूर इस पर मैं कुछ बात कर पाऊंगा। तो अभी फिलहाल तो ये बात ये जो गठबंधन का या कोalition का जो भी मुद्दा है, इस पर कोई भी बात नहीं कर सकता हूँ। हेमंत जी, we believe you, बट संजय राउत अटकलें लगा रहे हैं, बोले राज साहब को ये पूछना चाहिए था फडणवीस साहब को कि धारावी प्रोजेक्ट अडानी को क्यों दिया, मुंबई की जमीन पूरे अडानी को क्यों बेच दिए, हमारे यहाँ से एम्प्लॉयमेंट और जो जॉब्स और पूरे बिजनेस गुजरात क्यों चले जा रहा है। तो तरह तरह के सवाल संजय राउत ने खड़ा कर दिया है। तो हाउ डू यू सी दैट, क्या ये अगर यूबीटी और आपका कुछ गठबंधन के चांसेस है तो क्या संजय राउत इस पे पानी फेर रहे हैं, किस प्रकार से आप देखते हो? तो संजय राउत क्या बोलते हैं उस पर हम लोग इतना मायने नहीं रखते, क्योंकि एक बात बोलता हूं आपको, जब वो अगर इस तरह के सवाल उठाते तो कुछ महीने पहले उद्धव ठाकरे साहब और ये भी मिले थे, आदित्य ठाकरे भी मिले थे देवेंद्र फडणवीस जी से, बराबर है? जब नागपुर में अधिवेशन चल रहा था तब वो भी मिले थे। तो ये इस तरह के सवाल वो भी पूछ सकते हैं। आज उनके पास 20 एमएलए है, 10 उनके पास 9 एमपी भी है, तो इस तरह के सवाल वो भी पूछते हैं। हम लोग जब भी इस तरह की बात होती है, जब इंडस्ट्री महाराष्ट्र से बाहर जाती है, आज हिंदी लैंग्वेज इंपोजिशन का मामला है, उस पर ना तो कभी शिवसेना बात करती है। देखिए कैसे है ना, ये इफ्स एंड बट्स की बात है कि संजय राउत कहेंगे कि आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा या ये बात क्यों नहीं की। जो बात करनी है तो पार्टी चीफ है, वो बात करेंगे। कोई कंडीशन इनकी मतलब हमारी तरफ से ना रखी गई है, उनकी तरफ से जो कंडीशन है उस पर मैं अभी बात नहीं कर रहा, वक्त आने पर जरूर बात करूंगा इस पर, लेकिन ये इस वक्त में इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करूंगा। सर, ओवर हियर आई वुड लाइक टू आस्क यू अ सर्टेन वेरी वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है ये, मुंबई से संबंधित, पूरे महाराष्ट्र से संबंधित, और जहां तक मेरी जानकारी है, बाकी सब लोग मेरा सुधार करते हैं इस पे अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूं। जहां तक मुझे याद है कि बड़े लीडरों में से अकेले राज साहब ठाकरे ने इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इसके ऊपर वो ना जाने कितने सालों से बात कर रहे हैं। और वो है मुंबई का जो लोकल ट्रेन नेटवर्क जो है। सर, अभी हेमंत कामले साहब, जो एक्सीडेंट हुआ, मतलब हमारे जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, हमारे जो क्या बोलेंगे उनको, जो कॉर्पोरेट चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, दे वर मोर कंसर्न विद सम मर्डर विच हैज टेकन प्लेस इन मेघालय। हनीमून पे किसी का मर्डर हो गया, दे वर डिवोटिंग आवर्स एंड आवर्स टू दैट। और ये जो लोकल ट्रेन में जो एक्सीडेंट हुआ जिसमें इतने लोगों की मौत हो गई, उसके ऊपर किसी ने बात नहीं करी। राज ठाकरे जी took up this issue and took up this issue very very seriously, as he has been taking it up now for a long time. और रेलवेज का हेमंत कामले साहब इस पे प्रोजेक्ट है, उन्होंने एक प्रपोजल डाला था कि गिव अस एन एलिवेटेड कॉरिडोर जस्ट अबव दी लोकल ट्रेन, जो लोकल सबअर्बन ट्रेन चलती है उसके ऊपर एक और एलिवेटेड कॉरिडोर दे दीजिए, एकदम 50% जो है उसमें ओवर क्राउडिंग जो है वो कम हो जाएगी। आज तक, सर ये 1995 की बात है, आज तक उसके ऊपर किसी भी सरकार ने निर्णय नहीं लिया। हेमंत कामले साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जो लोकल सबअर्बन नेटवर्क है, रेल नेटवर्क, सर इट्स अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। आप बताएं सर, कामले साहब। राजीव जी, कैसे है ना कि आप एलिवेटेड कॉरिडोर बनाओ या उसको मतलब और कितनी ट्रेन बढ़ाओ। मतलब पहले तो 9 डिब्बे की ट्रेन चलती थी, अब 12 डिब्बे की चलती है, और अब प्रपोजल है कि 15 डिब्बे की ट्रेन चलेगी। देखिए कैसे है ना, पहली बात तो इसका जो मूल कारण जो है वो है कि पॉपुलेशन जी। आज की तारीख में हमारा अब कल से आज से ये शुरू हो गया है जो हमारा सेंसस है, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है कि एमएमआर रीजन, मैं सिर्फ मुंबई की नहीं बात करता हूँ, क्योंकि जो मुंबई में पब्लिक आती है वो एमएमआर रीजन से थे। फिर यहाँ से डहानू से लेके चर्चगेट तक, या आपका कर्जत कसारा से लेके वीटी चर्चगेट तक, या फिर पनवेल से लेके पुणे से तक का रोजमर्रा यहाँ पर लोग ट्रेवल करते हैं। पहली बात तो ये एमएमआर रीजन की जो ये है पॉपुलेशन है वो करीबन 2.5 से 3 करोड़ के ऊपर गई है। तो बाहर से आने वाली जो पब्लिक है
इस पर कंट्रोल लगाने के लिए जो नेशनल पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, ये कभी इस पर बात नहीं करेगी। यहाँ की जो स्टेट पार्टी है, इनको अपने वोटों की राजनीति करनी है। तो जब तक आप ये कंट्रोल नहीं करते, मैं कितनी बार आपके चैनल पर ये सवाल पूछ चुका हूं कि भाई ये आपके घर में 4 लोग रहते हैं और वहां पर अगर 8 या 10 लोग रहेंगे तो क्या होगी हालत? सेम हालत मुंबई की हो गई। मुंबई ओवर क्राउडेड हो गई है, ओवर पॉपुलेटेड हो गई है। तो इसका जो सोल्यूशन है, आप मेट्रो लेके आइए, आप कोस्टल रोड लेके आइए, आप आपके यहाँ पर 3 ट्रैक चलते हैं, सेंट्रल, हार्बर एंड वेस्टर्न। उसके बावजूद इतनी सारी आप फैसिलिटी दे कि एसी ट्रेन चालू कर रहे हो, एसी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, और इस पर कोई भी ये नेशनल पार्टी तो कोई भी बात नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर बात करेंगे तो बिहार का इलेक्शन है, उनको उनकी चिंता होती है। मतलब मुंबई की प्रॉब्लम पर बात करने के लिए उनको चिंता होती है कि मैं बिहार में इसका इफेक्ट आएगा, इसके लिए उस पर बात नहीं करेंगे। 1947 में हम लोग आजाद हो गए, उसके बाद जितने ये स्टेट बने, बिहार, उत्तर प्रदेश, सबके स्टेट है। महाराष्ट्र तो 1960 में बना है जी। फिर भी वहां का जो माइग्रेशन है, आज मुझे बताइए कि 11 हिंदी स्टेट है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट, सबसे ज्यादा माइग्रेशन वहां से है। हम वहां पर ये नहीं बोलते कि कोई, आप मुझे बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि 19A में कि कोई भी जो इंडिया का सिटीजन कहीं पर भी जा सकता है भाई, लेकिन उनके आने से जो प्रॉब्लम होती है उस पर हम बात नहीं करेंगे जी। जो मूल कारण है ये पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, ये माइग्रेंट जितने बढ़ रहे हैं, फिर किसी भी स्टेट में, कल जाके दिल्ली में ये प्रॉब्लम होती है तो दिल्ली वाले भी बोलेंगे, कल जाके बड़ौदा में प्रॉब्लम है तो बड़ौदा के लोग बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि वर्क परमिट के बारे में कोई भी आता है। और मुझे बात बताइए, जबलपुर से पूना ये ट्रेन शुरू करने का मतलब क्या है? कितनी ट्रेन? 45 ट्रेन आती है बाहर के स्टेट से। यहाँ पर जितने माइग्रेंट आते, क्यों आते? रोजी रोटी कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। हम सबका सबब, ठीक है, रोजी रोटी कमाइए, फिर राजनीति क्यों करते हो? सुपर शंकर सिंह हो, निरुपम हो, सब आते हैं, कौन जाओ वहां पर बोलकर आता है कि मैं राजनीति करने जा रहा हूं? आते तो यहां पर कांदा बटाटा बेचने के लिए, फिर राजनीति में जाते हो आप, यहां पर आपकी राजनीति सीखती है। लेकिन जब यहाँ के जो बेसिक प्रॉब्लम, इस पर हम लोग बात करते हैं, तो आप राजनीति का स्वरूप क्यों देते हो? क्यों नहीं सोचते कि ये पॉपुलेशन की, और पॉपुलेशन की वजह से होगा प्रॉब्लम? Sir, one final question on this. According to an affidavit which has been submitted in the court, 51,000, we had that figure on just now, 51,000, there it is, 51,802 people were killed in local trains in the last 10 years, till July last year, 2024, last year. So, which means about 5,180 people died every year. Sir, 5,180 लोग हर साल मरते हैं मुंबई के लोकल सबर्बन ट्रेन नेटवर्क में। सर, व्हेन आर वी गोना वेक अप? आई मीन, ये पहले मुझे अभी तक याद है, नितिन गडकरी साहब जब मेरे शो में आया करते थे पहले सहारा में, ये फिगर्स वो लेके आया करते थे, और गडकरी साहब ये कहा करते थे कि इतने लोग आतंकवाद से नहीं मरे हैं जितने हमारे लोकल सबर्बन ट्रेन नेटवर्क से मरे हैं। तो सर अब क्या हुआ? आपसे पूछ रहा हूं हेमंत कामले साहब, अब तो कुछ करना चाहिए ना? वी शुड डू समथिंग। आई मीन, दिस इज, हाउ कैन वी लिव विद दिस? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। राजीव जी, यूक्रेन और रशिया में भी इतने लोग नहीं मरे सर। इजराइल और गाजा पट्टी का जो लोग मरे हैं ना, वो भी मेरे पास फिगर जो है कि 55,000 वो वॉर में मरे हैं। लेकिन यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमाने वाला इंसान आज सुबह निकलेगा, शाम को घर पर वापस आएगा, इसका कोई भरोसा नहीं। दूसरी बात, देखिए, कोई भी एक्सीडेंट हो जहां पर गलती गवर्नमेंट की है, अब देखिए रेलवे एक्सीडेंट किस वजह से हुआ? ओवर क्राउडेड जो थी ट्रेन, इसके लिए हुआ। उसको मुआवजा कितना दिया? 5 लाख। कल इंद्रायणी जो नदी है, जो रिवर पर जो पुल बह गया, उनके जो विक्टिम है, उनके जो ये हियरर्स है, लीगल, उनको मुआवजा कितना दे? 5 लाख। मेरे समझ में एक बात नहीं आती, 8 करोड़ का जो कोटेशन जिस ब्रिज को पास हुआ, वो ठीक से बनता नहीं है, उस पर ध्यान नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि एकनाथ शिंदे रात को 2 बजे तक काम करते हैं, अजित पवार सुबह 6 बजे उठकर काम करते हैं, रात को 2-2, 3-3 बजे तक देवेंद्र फडणवीस जी हुडी पहनकर पार्टी का काम करते हैं। क्या काम करते हैं आपको पता है? फिर भी महाराष्ट्र की जनता का कुछ भला नहीं हो रहा है, ना तो बुनियादी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। ये एग्जैक्टली काम क्या करते हैं? इसलिए मैंने कहा था
एक डिबेट में कि भाई अगर इसका ये क्राउड कम करना है लोकल ट्रेन का, तो आप वर्क फ्रॉम होम का एक ऑप्शन है जो कोरोना में हम लोग ने सबमिट किया था जी। और दूसरा, जितने भी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिस है इनके आप टाइम चेंज कर दीजिए। देखिए अगर ये लोग इतना काम करें ना, इतने मिनिस्टर्स लोग, तो आपका जो मंत्रालय है वो 7 से रात को 8 बजे तक शुरू करेंगे, 7 से 3 और 3 से 8, लोगों के काम हो जाएंगे। मंत्री मिलते नहीं है लोगों को, जो उनके सेक्रेटरी वो मिलते नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, Right, सिर्फ that's सोचना है a कि great इसको idea. इफेक्टिव करना है कि नहीं करना है। That's a great idea. If I have flexible timings in office, why not? Let me go across to समीर बाकरे साहब। समीर बाकरे साहब, 2 सवाल उठते हैं मुंबई को लेकर के। नंबर 1, अडानी साहब। अडानी साहब को लेकर के हर एक के मन में रोष है, बहुत सवाल हैं कि भाई धारावी में 10 लाख स्क्वायर फुट आपने उनको दे दिया है, जिसमें से 4 लाख स्क्वायर फुट यूटिलाइज होगा। गवर्नमेंट ने जीआर निकाला है कि बाकी 6 लाख स्क्वायर फुट जो है अडानी साहब इज अलाउड टू सेल इट एज टीडीआर एंड कंपल्सरीली जो भी बिल्डर है मुंबई में उसको अडानी साहब से ही खरीदना पड़ेगा। टीडीआर जो है, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट जो है, ये 6 लाख स्क्वायर फीट के। उसके अलावा आपने मुलुंद का जो डंपिंग ग्राउंड है वो दे दिया, रेलवे की जो लैंड है वो दे दी, और अभी अभी कुर्ला में जो मदर डेयरी है वो लैंड भी आपने अडानी को दे दी, जस्ट बिकॉज ऑफ धारावी। दैट्स वन। नंबर 2, अबाउट द लोकल ट्रेन नेटवर्क, सर दैट इज द पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ मुंबई। अगर मुंबई की ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, सब वी आर रियली लुकिंग एट अ डिजास्टर एवरी मंथ इफ नॉट एवरी वीक। क्या होता है, आई एग्री, लोकल ट्रेन नेटवर्क इज नॉट एज ग्लैमरस एज से एविएशन, और एविएशन के एक्सीडेंट्स तो माशाल्लाह ये कहना पड़ेगा, एयर इंडियाज रिकॉर्ड हैज बीन सेकंड टू नन। द लास्ट रियल एक्सीडेंट व्हिच टुक प्लेस ऑफ एन एयर इंडिया प्लेन was in 1978 on New Year's Eve opposite Bandra, Arabian Sea में एक प्लेन क्रैश हुआ था, और उसके बाद 1985 में there was a terrorist attack on an Indian Air India plane, that was Kanishka, which blew up near the Isle of Cork, near Ireland. So अगर देखा जाए एक 40 साल पहले हुआ, और उसके पहले अगर वो देखा जाए तो एक्चुअली 50 साल पहले हुआ। सो एयर इंडिया का जो रिकॉर्ड है बहुत जबरदस्त है। बट लोकल ट्रेन्स, क्योंकि हर साल आपके 5000 पैसेंजर्स मर रहे हैं, इसलिए कोई उनकी तरफ देखता ही नहीं है। समीर बाकरे साहब, अब आप बोलें प्लीज। सर, आपका जो पहला सवाल है अडानी जी को लेके, मुझे ऐसा कहना है धारावी का जो रिडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है वो एक ओपन टेंडर प्रोसेस था, उसके ऊपर कोर्ट्स में भी काफ़ी बार चैलेंज हुए। सो अगर इतनी ब्लैटेंट वायलेशन जो कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन पार्टीज बोल रही है, तो ये तो फिर सर देश की जो अदालतें भी है वो भी क्या अडानी साहब के साथ है। तो मुझे ऐसा कहना है कि पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क ऑन एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और एवरी जो आइकॉनिक प्रोजेक्ट होता है, जैसा धारावी इतने सालों से है सर, आज तक कौन कर पाया धारावी का रिडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट। सो बेसिकली कांग्रेस पार्टी एंड अदर अपोजिशन पार्टी एंजॉय दैट द प्रॉब्लम शुड रिमेन, और अगर कोई मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कोई सरकार प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, तो उसके बीच में ट्राइंग टू क्रिएट क्वेश्चन मार्क्स इज नॉट डन। आई थिंक इफ समथिंग is as per the tender conditions which were subject to court scrutiny, so then we should not raise it on a daily basis because it might be part of the tender condition. So एक तो पहला ये है। दूसरी बात ऐसी है कि ये अडानी साहब के बारे में कांग्रेस हमेशा बोलती है, मुझे ऐसा कहना है सर, पहला अडानी साहब का जो ब्रेक था मुंद्रा पोर्ट का, वो चिमन भाई पटेल जी ने 1993 में 10 पैसे स्क्वायर मीटर पे उनको जगह दी। तो तेलंगाना की सरकार उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लेफ्ट की सरकार केरला में उनके साथ पोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो मेरा ऐसा कहना है, जो देश का जो बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, चाहे वो अडानी जी हो, चाहे अंबानी जी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, they are doing their business with different governments, and singling out one person just to create politics is not proper. और अगर किसी को आज भी धारावी के बारे में प्रॉब्लम है तो दे कैन अप्रोच द कोर्ट्स आर देयर ऑलरेडी, इतने जजमेंट कोर्ट देती है। और अगर आपको कोर्ट्स पे भी विश्वास नहीं है तो आपको अगर ऐसा कहना है कि देन यू वांट टू रेज क्वेश्चन मार्क ऑन एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। दूसरी बात, जो लोकल नेटवर्क अपना लोकल ट्रेन्स है सर, आप देखिए देवेंद्र जी पहले मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, जिन्होंने आज मेट्रो का नेटवर्क खड़ा करने की हिम्मत की। आज इतना बड़ा मेट्रो का नेटवर्क उन्होंने खड़ा कर रहे हैं, कोस्टल रोड का नेटवर्क उनके इसमें खड़ा हो रहा है। इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मुंबई में आज जो भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन देवेंद्र जी आज रियल सेंस में इंफ्रा मैन है।
उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई का किया, हमारे आदरणीय गडकरी जी ने जब 55 फ्लाईओवर बनाए थे तब मुंबई का ट्रैफिक ईज आउट हुआ था, और आज देवेंद्र जी के नेतृत्व में मुंबई का ट्रैफिक ईज आउट हो रहा है। दूसरी बात ऐसी है कि जो केंद्रीय रेलवे बजट है वो आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए सर, 2025-26 में ऑलमोस्ट 23,460 करोड़ जो है वो महाराष्ट्र को रेलवे को दिए गए हैं, जो लास्ट अलोकेशन से 10 टाइम जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10 टाइम्स है, उसमें से 16,000 करोड़ सर इसमें दिए हैं। लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस, लोकल नेटवर्क, लोकल ट्रेन का भी नेटवर्क बना जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हो रही है। मेट्रो का आज मुझे बताइए, आरे का अगर इशू नहीं खड़ा करते तो आज मेट्रो हम लोग सर ये 2.5 साल के डिले के कारण 5 साल पीछे चले गए। मेट्रो आप देखिए कि, और आप देखिए कि मेट्रो में भी लोकल ट्रेन में भी 180 सेकंड से 150 सेकंड पे हम लोग ला रहे हैं, दो ट्रेन के बीच का जो ये है टाइम डिफरेंस है। देन वी आर ट्राइंग टू मेक दिस जो नॉन एसी डब्बे है उनको भी हम एसी करने का या आप बना रहे हैं। बाकरे साहब, आई वांट टू नो दैट राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, बार बार यही उनका जिक्र है कि द जीडीपी ग्रोथ हैज बीन द लोएस्ट सिंस द कोविड टाइम्स, concentration of economic power in the hands of few, 1% of the people are having 40% of the asset, राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी जी मेक इन इंडिया को कहा कि फेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया इज फेक इन इंडिया एज पर राहुल गांधी जी। उन्होंने कहा कि एंटायर स्टार्टअप है, स्टार्टअप इज नॉट स्टार्टअप इंडिया, इट इज शट डाउन इंडिया। शट डाउन हो रहा है, 12,700 स्टार्टअप शट डाउन हो गया है, एफडीआई। तो किस प्रकार से गोइंग टू जस्टिफाई फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी? इट सेज ठीक है, कंटिन्यूस कंकरेंट गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स की वजह से हुआ है, बट हाउ आर यू गोइंग टू आंसर दीज चार्जेस? स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, lowest growth since COVID times, startup shutting down. प्रदीप जी, since you have raised this issue raised by the Congress party, राजन जी को मैं पहले भी सुन रहा था, उन्होंने कास्ट सेंसस की बात की, तो मुझे बताइए जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में जो लेटर लिखा था अपोजिंग द कास्ट रिजर्वेशंस के अपोज में लिखा था, फिर उन्होंने काका कालेकर समिति का रिपोर्ट नहीं आने दिया, 1951 से 2011 तक जो है वो कास्ट सेंसस नहीं किया गया। उसके बाद एक मनमोहन सिंह जी के सरकार में कास्ट सेंसस हुआ था, उसको नाम दूसरा दिया था, सोशल इकोनॉमिक का सेंसस था वो। उसका रिपोर्ट जब इनको बाहर लाना था, इन्होंने रिपोर्ट नहीं लाया। इन्होंने कर्नाटक में जो कास्ट सेंसस किया उसके ऊपर आज गलत कास्ट सेंसस किया करके सेंट्रल की इनकी कांग्रेस की टीम बोल रही है। तो 160 करोड़ और अगर वो सेंसस में इन्होंने खर्च किए, तो मुझे ऐसा कहना है कि सर कांग्रेस पार्टी इज नॉट सीरियस अबाउट द इश्यूज कंसर्निंग पीपल। और हम लोग कुछ करते हैं तो ये बोलते हैं कि हमने बोला था, इसलिए जब आपकी सरकार 60 साल थी तो आपने क्यों नहीं किए इतने जो आप बोल रहे हैं कि आज हमारी भाजपा की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है वो हम बोल रहे हैं। अरे आप बोल रहे तो आपने क्यों नहीं किया? मोदी जी ने करके दिखाया 11 साल में। और आपके सवाल पे आता हूँ प्रदीप जी, जो मेक इन इंडिया का ये जो मजाक बना रहे, ये मेक इन इंडिया का तो आज आपको सिर्फ मैं एक ही सेक्टर की बात करूंगा, डिफेंस सेक्टर की। आज उसमें जो आत्मनिर्भरता आई है तो वो क्या है? मेक इन इंडिया के वजह से आई है। आज हमारा नेट एक्सपोर्ट हो रहा है डिफेंस का। अर्लियर हम लोग तो सबमरीन को कोई पार्ट भी रहता था वो रशिया से इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत बन रहा है हर सेक्टर में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे आप सेमीकंडक्टर में हो, चाहे डिफेंस में हो, चाहे जो फील्ड हो। और जब स्टार्टअप के जो आंकड़े, सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स इंडिया में बन रहे हैं, सबसे ज्यादा एफडीआई हिंदुस्तान में आ रहा है, और आप जो जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो वी आर सेइंग दैट जीडीपी ग्रोथ वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। ये तो कोई फैक्ट डिनायल में नहीं है ना। तो 2014 के पहले क्या पूरी वेल्थ 99% लोगों के हाथ में हुआ करती थी क्या? इनके रेजिम में तो 7 साल लोगों को स्कूटर भी नहीं मिलता था। तो ऐसा क्रोनी कैपिटलिज्म है। आज जिनको वे गाली देते हैं अंबानी अडानी, ये तो प्रोडक्ट कांग्रेस के हैं। आज ये प्रोडक्ट तो कांग्रेस पार्टी ने क्रिएट किए ना। अगर आज इनको गाली देना है तो कांग्रेस पार्टी के पास्ट लीडर्स को गाली दीजिए। तो मेरा ऐसा कहना है कि जब कंट्री इज गोइंग अहेड और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी फ्रॉम 11 आज 10 साल में अगर हुई है तो इट शुड बी क्रेडिटेड। 2047 में जब विकसित भारत होगा तब हमारा जीडीपी विल बी इक्वल टू द डेवलप्ड कंट्री जीडीपी है। तो एक नॉर्मल इकोनॉमिक्स है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आज हमारा पर कैपिटा जीडीपी इज नॉट कंपेरेबल बिकॉज वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री एज इट। तो जब डेवलप्ड कंट्री हो जाएगी तो आ जाएगा सब जीडीपी। राइट। सुरेश चंद्र राजन जी, आपने उंगली उठाई है, मैं सीधा आपके पास जाता हूं जी। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। सर जी, भाजपा के प्रवक्ता अदानी के बारे में बात करते समय अदानी साहब
अदानी जी इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए या भाजपा की सरकार के लिए साफ हो गए। हमारे लिए धारावी रिडेवलपमेंट की सर तो आप क्या चाहते हो, क्या बोले अडानी जी को? कुछ और बोले? करने वाला कि ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी बोलते थे, उद्धव ठाकरे जो उनके साहब वजीर साहब बोल रहे हैं। राजू सिर्फ फ्रिविलेस इश्यूज रेज करके सर let him speak sir, I'll come back to you. बाकी सब मैं वापस आता हूँ। बोलिए राजन जी बोलिए। राजू जी, दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसकी कमियों के बारे में, उनकी विफलताओं के बारे में, उनके फेल्यूर के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, उनके ऊपर हम लोग उनका पर्दाफाश करते हैं, तो ये लोग भाजपा के सारे प्रवक्ता, सारे नेता गांधी परिवार के ऊपर, इंदिरा गांधी जी के ऊपर, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये मुझे आप एक बात बताइए सर, जाति न्याय जनगणना का सबसे ज्यादा अगर किसी ने इसका मांग की थी वो तो कांग्रेस पार्टी ने की थी, और भारतीय जनता पार्टी ने संसद भवन में हो या संसद भवन के बाहर जोर से विरोध किया था। लेकिन जब जाति न्याय जनगणना ये इनकी पॉलिटिकल मजबूरी बन गई, तब जाके इन्होंने जाति न्याय जनगणना करने का निर्णय लिया। इसके विपरीत जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसकी घोषणा की तो उसका कांग्रेस ने स्वागत किया है सर। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक सरकार अगर कोई अच्छा काम करती तो कांग्रेस पार्टी ने उसका स्वागत किया है, लेकिन भाजपा की मानसिकता इस तरह से बन गई है कि इनकी जो विफलता है, इनकी जो नाकामयाबी है, इनकी जो कमियां है, उसके बारे में कोई बात। सुरेश चंद्र राजन जी एक सवाल का जवाब देना सर प्लीज, छोटा सा सवाल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। काका कालेलकर रिपोर्ट, मतलब काका कालेलकर कमीशन जो है वो 1951 या 52 में बिठाई गई जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त। 1955 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, उसमें 2999 के करीब ओबीसी कास्ट को आइडेंटिफाई किया गया। पंडित जी ने उसको नकार दिया, पंडित जी की सरकार थी, नेहरू जी की सरकार थी, उन्होंने उसको नकार दिया, उनका दिस विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड। ठीक है सर। उसके बाद 1989 में जब मंडल कमीशन की बात आई, उस वक्त जनता पार्टी की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राजीव गांधी जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे। राजीव गांधी जी एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन 1991 सॉरी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनकी जो है उनकी पूरी स्पीच पार्लियामेंट में दर्ज है सर, इट्स ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने मंडल कमीशन का टोटल विरोध किया है कि ओबीसीज को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, ये तो राजीव गांधी जी ने बोला है सर। तो कोई भी अपने पास से तो भाग नहीं सकता ना सुरेश चंद्र राजन जी। अब आप बोले प्लीज। नहीं राजू जी, मुझे एक बात बताइए। बोलिए सर। आप ये सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, एट द सेम टाइम जाति न्याय जनगणना के मुद्दे को लेकर अमित शाह की भूमिका, नरेंद्र मोदी जी की भूमिका और उनके भाजपा के कई मंत्रियों की भूमिका जो नकारात्मक थी, उसका आप समर्थन करते हैं क्या? इस देश की मीडिया, इस देश की जनता इसके ऊपर बात करेगी कि नहीं सर? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी सर, ऐसी क्या तो बात है? आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी की जैसे आपसे सवाल पूछ रहे हैं वैसे बीजेपी से भी सवाल अमित पूछते शाह की हैं। भूमिका क्या थी सर? ये लोग तो खुला खुला विरोध करते थे। सर भारतीय जनता पार्टी ने बात करता है सर मंडल कमीशन के ऊपर जो पार्लियामेंट में लोकसभा में वोट पड़ा था, भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट की इंप्लीमेंटेशन पर समर्थन में वोट दिया था सर, इट इज ऑन रिकॉर्ड। कांग्रेस ने अपोज किया था, कांग्रेस ने विरोध किया था, इट्स ऑन रिकॉर्ड सर। आप देख लीजिए, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स देख लीजिए सर। राजन जी, सुरेश राजन जी, आप कहते हैं कि आप बीजेपी के अच्छे कामों को सपोर्ट करते हैं। मोदी साहब गए 3 नेशन टूर में, 3 नेशन जगह जा रहे हैं और जबरदस्त उनको रिसेप्शन भी मिल रहा है और स्ट्रेटेजिकली बायलैटरल और डिप्लोमेटिक चीजें हासिल करने के लिए विजिट है G7 जैसे वहां पर। मगर और मोदी जी यहां पर जाकर देश में निवेश लाने की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से अलग अलग चीजें बोल रहे हैं कि किस प्रकार से हमने 1 नेशन 1 टैक्स बना दिया, हमने लॉ को डीक्रिमिनलाइज किया, हमने कॉर्पोरेट टैक्स को रैशनलाइज कर दिया, ईज ऑफ बिजनेस हमने बढ़ा दी। तो इस चीज का आप अपोज कर रहे हैं, बोले ये कौन सा, क्या मोदी जी क्या कर रहे हैं? 30 जयराम रमेश गिरा के बोल रहे हैं कि 35th ट्रिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी सिंस May 23 से आज तक कांग्रेस ने गिन के उन्होंने कहा 35th ट्रिप है।
कुछ हासिल नहीं हुआ अब तक, ना डिप्लोमेटिक ना एवरी फील्ड देयर नॉट। और आगे का मणिपुर कब जाओगे? हर चीज में आप मणिपुर मणिपुर मणिपुर। सुरेश चंद्र जी कब तक ये करते रहेंगे आप? नहीं प्रदीप जी, मुझे एक बात बताइए, मणिपुर इस देश का अंग नहीं है क्या? मणिपुर हमारा भारत देश का भाग है कि नहीं है? बोलिए बोलिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल बिल्कुल, पूछ रहा बिल्कुल हूँ। मणिपुर हमारे उसमें भारत ये का कौन सा राज्य सवाल है, हुआ, स्टेट सर? है कि नहीं? अगर सालों से मणिपुर में इस तरह के दंगे भड़कते हैं, मणिपुर जलता है, वहां पे जातीय दंगे होते हैं, तो उसके ऊपर सरकार को सवाल नहीं पूछना चाहिए? और उसको इस सारे सिचुएशन के ऊपर सरकार जवाब देने के लिए आंसरेबल नहीं है सर? मुझे ऐसे लगता है कि जब हम लोग ग्लोबल लेवल पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वो एट द सेम टाइम हम लोगों को लोगों के संबंधित मुद्दे के ऊपर भी बात करनी चाहिए सर। जी मोदी सरकार ने जो जो योजना लाई थी उसमें से 71% से ज्यादा योजना असफल रही है। उसका कारण यह है कि इन्होंने जब योजना ये बनाई है, पब्लिक ओरिएंटेड योजना नहीं थी। उनको थोड़ा पब्लिक का सोचना चाहिए और पब्लिक क्या चाहती है उसके हित में इनको काम करना चाहिए। जी राइट, आई एम कमिंग टू यू समीर बागरे साहब, यू रेज योर हैंड। लेकिन हेमंत कामले साहब, ये बार बार हम लोग जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, द होल कंट्री सीम्स टू बी एंथ्यूज्ड बाय इट। कास्ट सेंसस होना चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए, जातीय जनगणना होना चाहिए, हर एक को मालूम होना चाहिए कि कौन सी जात के लोग कितने हैं, जितनी जिनकी संख्या है उसके हिसाब से उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट? हम हेमंत कामले साहब, आपका खुद का विचार क्या है इसको लेकर के? कामले साहब देखिए कैसे है ना कि कास्ट वाइज ये सेंसस इनका करने का मूल कारण क्या है, ये मेरे समझ में नहीं आया अभी तक कि इनका क्या है, मतलब व्हाट इज द मोटो। क्योंकि रिजर्वेशन के वक्त आपने अभी कहा कि राजीव जी ने जो भाषण किया था 1989-90 के जो मंडल कमीशन के प्रस्ताव के ऊपर, तो उनका विरोध था उस पर। जी अब राहुल गांधी जी उस सवाल को उठा रहे कि भाई ये होना चाहिए। अब पहले बीजेपी ने नकार दिया था, अब उसको कास्ट सेंसस कर रहे वो। लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आई कि जिस कास्ट सेंसस की बात हो रही है, तो कास्ट जहां तक मैं समझता हूं कि रिजर्वेशन से ज्यादा कनेक्टेड होती है, बराबर है जी। अब जो पिछड़े लोग थे, पिछड़े जनजातियां थी, उनको समाज में उनको आर्थिक रूप से जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। इसके लिए हमने जो प्रावधान था संविधान में कि भाई रिजर्वेशन होना चाहिए, वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए था। लेकिन जो एजुकेशनल वहां पर आपके जो क्षमता चाहिए थी वो नहीं थी, तो उसका इम्प्लीमेंट होते 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 ये आगे बढ़ गया। अब 1989-90 में आपका मंडल कमीशन आ गया। देखिए मैं समझता हूं कि आज की तारीख में हम जहां पर एक विकसित भारत की बात करते हैं, तो मैंने आपके चैनल पर ही कुछ प्रस्ताव दिए थे और कुछ बोला था मैंने। ये शायद बहुत से लोगों को ये बात हजम नहीं होगी या अच्छी भी नहीं लगेगी। मैंने कहा था कि भाई जो भी रिजर्वेशन है, मैं थोड़ा सा हटके भी बोल रहा हूँ कि रिजर्वेशन है, इसका मंथली पास नहीं हो जाए। जैसे जब लोकल में जाते हैं ना, तो मंथली पास नहीं होना चाहिए, जबकि मैं 1952 का लाभार्थी हूँ। फिर भी मैं कहता हूं कि इसका मंथली पास नहीं होना चाहिए, वन टाइम टिकट होना चाहिए। हमारा मूल उद्देश्य क्या था कि भाई आर्थिक और सामाजिक जो समानता वो होनी चाहिए, जो भी पिछड़े लोग हैं उनके लिए। तो जब मैं उसका फायदा उठाता हूं, मैं रिजर्वेशन का फायदा उठाता हूं, मैं IAS होता है, IPS होता है, क्लास 1 ऑफिसर होता हूं, इंजीनियर होता हूं, डॉक्टर होता हूं, तो अब मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी होती है, ना कि संविधान की या आरक्षण समिति की या आरक्षण पॉलिसी की। तो मेरे ये विचार, ये मैं स्पष्ट रूप से पहले भी आपके यहाँ पर कह चुका हूं, फिर से कहता हूं, अरे मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से हमारा देश जाति जाति में, धर्म में, प्रांत में बट रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन लाना पड़ेगा और किसी ना किसी को इसके लिए पहलकदमी करनी पड़ेगी। मैं इस विचार का, ये मैं विचार आपके साफ साफ यहाँ पर कह रहा हूँ। जी दुरुस्त। हेमंत जी बात है, विल कम बैक टू द इंद्रायणी ब्रिज इन पुणे। तरह तरह के बातें हो कि अजित पवार एज अ गार्डियन मिनिस्टर हैज ही फेल्ड। रविंद्र चौहान जी, बीजेपी वाज अ मिनिस्टर देन, उन्होंने कितना 8 करोड़ पास हुआ, 80,000 का क्या खर्चा
तो अलग अलग प्रकार के आरोप अब लगने लगे। एकनाथ शिंदे जी ऑर्डर किया कि ऑल पूरे महाराष्ट्र में जितने ऐसे ब्रिजेस है उसका वापस पूरे इंस्पेक्शन होना चाहिए। तो राज साहब ने क्लियर कट कहा कि प्रशासन हैड टू स्टॉप पीपल मूविंग ऑन। हाउ डू यू सी द एंटायर फियास्को? हाउ डू यू सी द एंटायर फियास्को? हेमंत कांबले साहब। प्रदीप जी, मैंने पहले ही कहा था, मतलब इस डिबेट के शुरुआत में ही कहा था कि भाई हमारे जो अभी के जो डेप्यूटी चीफ है एकनाथ शिंदे जी, वो रात को 2-2 बजे तक काम करते हैं। अजीत पवार सुबह 6 बजे उठकर काम करते हैं। देवेंद्र जी 24 घंटा काम करते हैं। तो इतने सारे मतलब चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इतना सारा काम करते हैं, और उनका जो ये है मिनिस्टर कैबिनेट है वो अगर काम करता है, तो फिर इस तरह की बातें क्यों, उनके डिपार्टमेंट से ऐसी चूक क्यों होती है? अब कोई हादसा होता है उसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात करते हैं। जब कोई रेलवे का हादसा होता है तब उसके ऊपर हम सॉल्यूशन लाने की बात करें कि 15 डिब्बे की ट्रेन करें। क्या इनको इसके पहले कोई मतलब इस तरह की जो अड़चने हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देते? तो किस तरह का काम चल रहा है महाराष्ट्र में? मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं कि हमारे यहाँ पर जब कोई हादसा होता है उसके बाद ही हमारे जो भी मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर, सब क्यों जागते हैं? जब तक पहलगाम नहीं हो तब तक हम लोग ने वहां पर सुरक्षा का जायजा नहीं लिया। जब तक यहाँ पर रेलवे का एक्सीडेंट हुआ नहीं तब तक हमने उसका जायजा नहीं लिया। सर, जब और तक वो वहां पर डिस्कशन नहीं बंद हो अहमदाबाद में वो प्लेन क्रैश नहीं होता तब तक हमने बोइंग पर सवाल नहीं उठाए, जो ड्रीम लाइनर पर सवाल नहीं उठाए। अब जब ये सब होता है उसके बाद हम ऑडिट करते हैं, उसके बाद हम तफ्तीश करते हैं, उसके बाद अब इंक्वायरी करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात समझिए, एवरी जो भी वहां पर पावर में आता है वो अपनी पावर को एंजॉय करते हैं। उनको लोगों से, यहाँ के पब्लिक से, यहाँ के वोटरों से कोई लेना देना ही, ये मेरा मानना है। No, but you know, हेमंत जी, राज साहब ठाकरे was the only person who talked about openly about Dreamliner, कि ड्रीमलाइनर तो एक पाबंदी था कुछ समय के लिए, कुछ ईयर्स के लिए किसी ने इसको खरीदना के लिए इनकार भी किया था। इनफैक्ट आई थिंक बीजेपी आल्सो अर्लियर अपोज्ड इट। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू हाईलाइट दैट। कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट, द ड्रीमलाइनर कंट्रोवर्सी? नहीं, देखिए कैसे ना, ड्रीम लाइनर का तो पूरा मतलब वॉशिंगटन डीसी से लेके जितने आपके सब में आ गया था, वॉशिंगटन पोस्ट में भी इसके और बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री होती, सब कुछ हुआ था। उसके बावजूद भी हम अगर इस तरह के रिस्क उठाते हैं कि वहां पर दिल्ली से प्लेन उड़ा है, यहाँ पर आता है, वहां पर उसका टेक्निकल चेकअप होता है नहीं होता है। देखिए कैसे ना, अभी इस पर कुछ बात करना मैं वाजिब नहीं समझूंगा, क्योंकि डीजीसी का जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद तफ्तीश में सब कुछ मालूम पड़े, क्योंकि अभी एलिगेशन करना दैट इज नॉट द राइट थिंग। बट ड्रीम लाइनर पर तो सवाल उठाए गए और वर्ल्ड वाइड उठाए गए, बोइंग पर वर्ल्ड वाइड सवाल उठाए गए कि कितने एक्सीडेंट हुए 2023 से लेके और 2019 से लेके 23-25 तक कितने एक्सीडेंट हो गए और कितने लोग मरे। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं देखिए देश की बात होती है। अभी राजीव जी ने एक बात बड़ी सटीक कही थी कि जो ट्रेन और बस या जो रोड एक्सीडेंट की जब बात होती है उससे ज्यादा मुआवजा जब इसको जो प्लेन से करते हैं, क्योंकि वो ग्लैमरस ट्रैवलिंग है, वहां पर एक पर्टिकुलर एलिट क्लास के लोग ट्रैवल करते हैं। क्या उसके लिए आप उसको 1 करोड़ का उनको, ठीक है, उनका जो इंश्योरेंस है, तो हम एक हमारा प्रपोजल है, हमारा एक प्रस्ताव है समीर जी, आपकी पार्टी हम तो दूसरे, इसके पहले भी एक डिबेट में मैंने ये आपसे सामने ये प्रस्ताव रखा था कि भाई अभी टिकट जो है हमारी रेलवे टिकट, इसको इंश्योरेंस इंक्लूड करके दे दीजिए। तो ये 5 लाख का इंश्योरेंस देके किसी मतलब 25 या 30 लाख का कोई इंसान जाता है जो अपनी घर की जिम्मेदारी निभा रहा है और अचानक निकल जाता है, तो ये 5 लाख से कुछ नहीं होने वाला। इंश्योरेंस कवर करके हमें टिकट दीजिए, जैसे आपने एयर टिकट देते हो वैसे अभी ट्रेन के भी टिकट दीजिए, लोकल के भी टिकट दीजिए। जी दुरुस्त बात है। समीर बागरे साहब, दिस इज अ वेरी गुड प्रपोजल। आई थिंक वी शुड डू दैट। डोंट यू थिंक वी शुड इंप्लीमेंट इट? इसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए सर? आपको क्या लगता है? और दूसरी चीज जो हेमंत कामले साहब ने कही, और आपके बाद मैं जाऊंगा सूर्य चंद्र राजन जी के पास पूछने के लिए उनसे, जो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जहां तक रिजर्वेशन का सवाल है, आरक्षण का जहां तक प्रश्न है, आरक्षण जो होता है वो जैसे उन्होंने कहा चलो वन टाइम टिकट इन द सेंस दैट कि फैमिली के एक मेंबर को अगर रिजर्वेशन मिल गई, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी उस
उस फैमिली को रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। जो क्रीमी लेयर की पहले बात हो रही थी, आज की तारीख में नहीं हो रही। आप देखिए शेड्यूल कास्ट में भी, शेड्यूल ट्राइब्स में भी, ओबीसीज में भी, और ओबीसीज में तो कई ऐसे इतने अति पिछड़े वर्ग हैं सर, जिनके पास अभी तक आधार कार्ड नहीं मिलता उनका। वो बंजारा समाज के हैं, इधर से उधर भागते हैं वो आज तक। उनको जो लोकल पुलिस स्टेशन है ना सर हमारे महाराष्ट्र के, एंड आई एम नॉट जोकिंग, लोकल पुलिस स्टेशन गांव खेड़े में, they are still classified as robber tribes. I am not joking sir, it is the truth. In certain police stations in the interiors of Maharashtra, there are certain people, especially of the Vanjara Samaj, who are classified as robber tribes. Now my point is sir, those people are not getting anything at all. उनको कुछ नहीं मिल रहा है सर, और जिनको मिल रहा है उनको सिस्टम समझ आ गया है कि यहां पर ऐसे करना है, यहां पर ऐसे करना है, यहां पर ऐसे करना है। एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच व्हाट हैपेंस इज, जो बाकी शेड्यूल का समाज जो है, दलित समाज जो है, वो वंचित रह जाता है। कुछ परिवार दलित समाज में से उनको बहुत कुछ मिल जाता है। यही हिसाब किताब सर शेड्यूल ट्राइब्स में, यही हिसाब किताब ओबीसी में। समीर बागरे साहब, आपको लगता नहीं है कि वी शुड टेक ए वेरी साइंटिफिक एंड रैशनल लुक एट दिस? आप बताएं सर बागरे साहब। सर वेरी गुड पॉइंट रेज बाय मिस्टर हेमंत जी। मुझे ऐसा कहना है कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ आवर कंट्री है भूषण गवई साहब, भूषण गवई साहब नागपुर से 1996 से मैं उनको जानता हूँ। सो ही इज अ मोस्ट स्कॉलरली पर्सन आई हैव सीन इन द लीगल फील्ड। आज जो हेमंत कामले साहब ने जो मुद्दा उठाया है, भूषण गवई जी का भी कहना वही है। लेकिन कैसा है सर, ये एक वाइडर डिबेट है, एंड एवरी कम्युनिटी और एवरी कास्ट सिस्टम जो इंडिया में है, जहाँ पर पिछड़ा वर्ग है, दे विल हैव टू डिबेट इट अमॉन्ग देमसेल्फ। बिकॉज ये क्या होता है कि अगर आज पार्टी का जो भी स्टैंड है, ऑफिशियली पार्टी का स्टैंड है, हर पार्टी का स्टैंड है, लेकिन जो पॉइंट्स यहाँ रेज हुए हैं, बिकॉज वी हैव टू इंश्योर दैट द रिजर्वेशन विच वॉज इंटेंडेड बाय आवर ऑनरेबल भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, कि ये लास्ट आदमी को इसका फायदा मिले, तो ये वहां तक पहुंचना चाहिए। And I agree with you that it is a larger question which has to be addressed by the courts of the country, including there has to be a wider debate amongst the people who are the beneficiary of the reservation, और उनको भी खुद को सामने आना चाहिए कि जैसा कामले साहब ने बोला कि दो I am a beneficiary of 1952 law, still I want to say it. So अगर कामले साहब जैसे लोग, काफी लोग ऐसे बोलते हैं, तो आई डेफिनेटली थिंक जो उनके समाज में या जो भी समाज में, ओबीसी समाज हो चाहे जो भी हो, उसमें जो वंचित लोग हैं जिनको सही में रिजर्वेशन की जरूरत है, वहां तक पहुंचेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि दिस इज नॉट समथिंग विच वी कैन say in few words. It's a very wider and complicated questions. So we have to see the constitutional provisions. We have to see the what about insurance for judiciary and all the other stakeholders. Sir, what about insurance for bus and train tickets? देखिए, इंश्योरेंस फॉर ट्रेन एंड बस टिकट्स इज अ गुड सजेशन, लेकिन प्रैक्टिकली सर आप मुझे बताइए, जब इंश्योरेंस होता है, सो दैट पर्सन्स डिटेल्स हैव टू बी कैप्चर्ड अलॉन्ग विद द, जो आज अपना एयर इंश्योरेंस भी होता है, यू हैव टू फिल अ फॉर्म। और अगर आप टिकट भी लेते हैं रेलवे का, तो आप एक रेलवे का टिकट लेके जा रहे हैं, सीजन पास के साथ देते हैं एडिशनली, सीजन पास के साथ यू हैव टू। नहीं ठीक है, सी मैं ऐसा नहीं, मैं तो आई एम वेलकमिंग दैट सजेशन। सर गिवन द एयर टिकट एंड द स्टोरी, यू आर पर्पसली नॉट टॉकिंग अबाउट देम बिकॉज़ दे आर पुअर पीपल, गरीब से गरीब लोग जाते हैं बीएसटी। अब जो सीजन टिकट के देवेंद्र फडणवीस से लॉटरी था, एक पास है, यू कैन मल्टीपर्पस, ट्रेन में भी इस्तेमाल करो, बस में भी, दैट्स अ ग्रेट मूव। उसके साथ जो सीजन टिकट के पास है, identification will be very clear, your all identity is revealed there, it will be easier. I am with you on this, so I am with you on this. I am just saying that whatever the practical difficulties have to be removed. The idea of having a insurance for every passenger, whether it is traveling by train, road or air, has to be there. Absolutely. Because आज unforeseen circumstances में अगर कोई घर का जो कमाने वाला व्यक्ति जाता है, तो he should be protected definitely. It's a great I am not opposing that. That's a great idea. हेमंत जी ने फर्स्ट क्लास आइडिया बोला। Great suggestion. ना समीर जी, I'll come to you. मोदी जी बाहर जा रहे हैं, आप बोल रहे कांग्रेस क्यों विरोध कर रहे हैं, गिन के बोल रहे 30 फ्रॉम 23, बट मोदी जी बाहर जाके क्या कह रहे हैं? ये भी कह रहे हैं कि 6 डिकेड में ये पहला गवर्नमेंट है, बीजेपी लेड गवर्नमेंट, 3 बार कंटिन्यूसली इलेक्ट होकर आया। ये देश के बाहर ये प्रचार करना किस प्रकार से आप उचित समझते हो? तब जयराम रमेश और कांग्रेस पूछते हैं कि आपके डिप्लोमेटिक फेलियर गिनाओ,
मणिपुर क्या देश का हिस्सा नहीं है? सुरेश चंद्र राजन जी बार बार आपसे पूछ रहे हैं क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है, या एटलीस्ट प्रदेश समझ के विजिट तो करो ना. हाउ यू गोइंग टू आंसर दीज आर क्वेश्चंस दैट एवरीबॉडी विल बी थिंकिंग व्हाई प्राइम मिनिस्टर इज नॉट आंसरिंग. बाकरे साहब. प्रदीप जी, पहले तो मैं राजन जी से पूछना चाहूँगा, राहुल गांधी जी जो पश्चिम बंगाल में जो राइट्स हुए, क्या पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है कांग्रेस पार्टी के हिसाब से? वो कितने बार पश्चिम बंगाल गए जहाँ पर हिंदुओं को खदेड़ के मारा गया? तो ये जो डुप्लीकेट एंड डबल स्टैंडर्ड्स है कांग्रेस पार्टी के, मणिपुर इज अ स्पेशल सिचुएशन जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया और आर्मी एंड पुलिस फोर्सेस आर ट्राइंग हार्ड टू कंट्रोल. अब उसकी राजनीति करना और आप उसके बारे में बोलना तो एक जस्ट ट्राइंग टू डाइवर्ट द अटेंशन. और मुझे ऐसा लगता है जयराम रमेश जी इनके शायद चीफ स्पोक्स पर्सन है पार्टी के या मीडिया हेड है, वो तो मुझे ज्यादा ट्रैवल एजेंट ही लगते हैं कि मोदी जी कहाँ कहाँ जाते हैं उसका रिकॉर्ड वो खुद ही रखते हैं. तो 35 ट्रिप्स हुई, 40 ट्रिप्स हुई. अरे आपको देखिए, यू हैव टू सी द कंटेंट. आज साइप्रस जा रहे, जैसे ओपनिंग रिमार्क में राजीव जी ने कहा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस विजिट. So instead of concentrating on these important diplomatic initiatives, these people are saying कि अरे 35 बार, 35 नहीं, हम 350 बार जाएंगे. अगर देश का भला हो रहा है तो हम 3000 बार जाएंगे बाहर के कंट्रीज में. सो देश के लिए कुछ भी करना पड़े तो जाएंगे. और मोदी जी कोई हॉलीडे नहीं मना रहे. राहुल गांधी जी आज 5-6 दिन से सोशल मीडिया में कहीं दिख नहीं रहे. वो कहाँ गए? मोदी जी का ट्रैवल प्लान जयराम रमेश जी देख रहे हैं. तो मेरा ऐसा कहना है कि देश के लिए अगर प्रधानमंत्री जी कोई कंट्री के 22 साल बाद विजिट करते तो उसमें इनको दिक्कत क्या? द पॉइंट इज बार बार घूमने से भी डिप्लोमेटिक जो लाभ मिलना चाहिए वो कांग्रेस के हिसाब से शायद लाभ नहीं मिल रहा है. बाकरे साहब, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज दैट. प्रदीप जी, आज मुझे बताइए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया था, तो एक भी अरब कंट्री ने भारत के खिलाफ आवाज या कोई पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया. So this is a big achievement for the diplomacy, and even a country like UAE, country like Saudi Arabia, country like Iran, who are thinking opposite in the opposite direction, वो भी भारत के साथ खड़े. तो मेरा ऐसा कहना है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज अ सीरियस बिजनेस. इसको कोई मीम्स बना के या कोई ऐसी बात करके सॉल्व नहीं होगा. यू हैव टू सी व्हाट इज टू बी achieved by the. Sir, all that people want is Sameer Bagre साहब. इसे before I go back to सुरेश चंद्र राजन जी, छोटी सी बात है सर, जैसे मणिपुर का मैटर है या ऑपरेशन सिंदूर का मैटर है, जो लीडर्स हैं ऑपोजिशन के उनको बुला लीजिए और उनको ब्रीफ कर दीजिए कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं है. आई अंडरस्टैंड व्हाई ही इज नॉट गोइंग. लेट्स बी वेरी क्लियर. We are privy to a lot of information which we can't use. I can't use it over here. Let me tell you very frankly, I can't say here why the Prime Minister is not going to Manipur. But there is a reason for it. Let's be very clear. लेकिन जैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, इट्स ए कैबिनेट रैंक सर. इफेक्टिवली ही शैडो प्राइम मिनिस्टर. राहुल गांधी जी और अपने क्या नाम है इनका, खड़गे साहब और एक दो और ऑपोजिशन के लीडर्स को बुला करके ब्रीफ कर दिया जाए कि भाई ये वजह है कि इसलिए नहीं जा रहे. सो पुट एन एंड टू इट. दैट्स माय ओपिनियन. एनीवे सर, आप लोग ज्यादा अकल वाले, मैं कौन होता कुछ बोलने वाला. लेट मी गो अक्रॉस टू सुरेश चंद्र राजन साहब. सुरेश चंद्र राजन साहब, या आप बोलिए सर प्लीज. राजीव जी, कैसा है ऑपरेशन सिंदूर के पूरे डिटेल्स ऑपोजिशन पार्टीज को ब्रीफ किए गए थे. सर्टेन कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स भी उनको ब्रीफ किए गए थे. फॉरेन डेलीगेशन में कांग्रेस पार्टी के ऑनरेबल मेंबर्स थे, सबको ब्रीफ किया गया. एंड मणिपुर की जो स्थिति है उसके बारे में भी ब्रीफ किया गया है. बिकॉज इट हैज, कांग्रेस पार्टी नोज, बट फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स. अगर आप कोई ऐसे इश्यूज रेज करना चाहते हैं तो इट इज अप टू यू. अगर देश के प्रॉब्लम्स को आपको रोज हाईलाइट करना है, आप जैसा ऑपरेशन सिंदूर इतना ब्रीफ करने के बाद भी राहुल गांधी क्या सवाल पूछते हैं कि कितने जहाज गिरे, ये सवाल तो पाकिस्तान में पूछा जा रहा है. तो आज मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी को सीरियसली सोचना चाहिए कि देश की राजनीति करते करते वो देश के खिलाफ मत बोलिए. आप मोदी जी और इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगा. बागरे साहब, इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगा. सॉरी, मोदी जी को आप क्रिटिसाइज कीजिए, बीजेपी को क्रिटिसाइज कीजिए. दैट्स अ सेपरेट इशू. वो उनका हक है. दैट्स अ सेपरेट इशू. एज अ ऑपोजिशन पार्टी वो कांग्रेस का हक है. लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा अगेन, एंड आई एम रिपीटिंग दिस अगेन. 1971 वॉर में हम लोगों ने पाकिस्तान को खदेड़ा था. 93,000 उनके हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे पाकिस्तान के, जो हमारे पास थे, उन्होंने सरेंडर किया. उस लड़ाई में वी लॉस्ट 49 एयरक्राफ्ट. 49 एयरक्राफ्ट हम लोगों ने खोए थे 1971 की वॉर में. 49 एयरक्राफ्ट. इट डजंट मैटर हाउ मेनी एयरक्राफ्ट यू लूज. व्हाट मैटर्स इज वेदर यू हैव अचीव्ड योर ऑब्जेक्टिव और नॉट. लेकिन
सुरेश चंद्र राजन जी, मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूं। रिजर्वेशन का जहां तक सवाल है, आरक्षण का जहां तक सवाल है, सर आरक्षण का फायदा गरीब से गरीब आदमी, पिछड़े से पिछड़े आदमी, जो सामाजिक तौर पे भी पिछड़े से पिछड़ा है, उस तक पहुंचने के लिए आपको लगता नहीं है कि एक लिमिट होनी चाहिए कि एक फैमिली में एक बार रिजर्वेशन हो गई या 2 बार हो गई, उसके बाद नहीं होनी चाहिए? आपको लगता नहीं है सर ऐसा होना चाहिए? आप बताएं राजन जी। राजीव जी, सबसे पहले तो ये बात हमको समझ में लेना चाहिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जाति न्याय जनगणना को केवल रिजर्वेशन तक सीमित रखना चाहती है, या उनकी ऐसी समझ है कि जाति न्याय जनगणना करेंगे तो हमें रिजर्वेशन का ही देखना है। लेकिन जाति न्याय जनगणना ये रिजर्वेशन तक सीमित नहीं है। जाति न्याय जनगणना करने के कारण इस देश में कौन से जाति का, कितने समाज के कितने लोग रहते हैं, इसका एक डेटा सरकार के सामने आ जाएगा। और रिजर्वेशन के साथ साथ इस सारी जातियों के लिए अलग अलग योजना को बनाते समय हमारे पास एग्जैक्टली फिगर आएंगे, तो उसके आधार पर हम लोग उनको बजट में प्रोविजन कर सकते हैं, अलग अलग योजना के माध्यम से उनको एम्पावर कर सकते हैं। लेकिन सर रिजर्वेशन का जहां तक सवाल है, मैं आपके बात से सहमत हूं कि जिन लोगों को रिजर्वेशन का फायदा हुआ है, जिन लोगों ने रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकर उसका विकास किया है, ऐसे लोगों को रिजर्वेशन से दूर रखना चाहिए। और जो लोग आज भी आपने देखा होगा कि मैं शेड्यूल कास्ट की बात करता हूँ, शेड्यूल कास्ट में महाराष्ट्र में 59 कम्युनिटी आती है, उसमें 1-2 कम्युनिटी को छोड़कर बाकी कई सारी ऐसी कम्युनिटी है जिनको फर्स्ट टाइम भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला है। करेक्ट। तो इसका मूल मुद्दा जो ये है कि राहुल गांधी जी का कहना ये है, जिनकी आबादी जितनी आबादी है उतना उनको हक दे दो। इसका मतलब ये है, मैं मातंग समाज से हूँ सर, मेरे समाज को मातंग कम्युनिटी इज द सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी इन शेड्यूल कास्ट इन महाराष्ट्र। लेकिन मातंग समाज को कहीं पे भी कुछ भी मौका नहीं मिलता है। तो हम लोग चाहते हैं हमारी जितनी लोक संख्या है, उस लोक संख्या के आधार पे हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और ये हमारा अधिकार है सर। इस देश के संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है वो हमको मिलना चाहिए। और इसमें क्या गलत है सर? संदीप जी एक चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, एक सेकंड। सुरेश चंद्र राजन जी, जो आपने बात कही है वो दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। समीर भाकरे जी और हेमंत कामले जी इससे आपसे कोई डिसएग्री नहीं करेंगे। समीर भाकरे जी इस पे डिसएग्री नहीं कर रहे हैं आपसे। सबसे बड़ी बात क्या है, ये कास्ट बेस्ड सेंसस का जो डेटा है उसके हिसाब से फिर सरकार, जो नीति आयोग है, जो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, एक एक स्कीम किस तरीके से किस किस को क्या क्या मिलना चाहिए उस पर डिसीजन हो सकता है। देयर इज नो डिसएग्रीमेंट ऑन दैट। सुरेश चंद्र राजन जी आप कुछ बोल रहे थे ना? सुरेश चंद्र आप बीजेपी सर इसमें मैं ये जाति न्याय जनगणना का जो सबसे बेस्ट बेनिफिट है ना, उसका एक आदर्श उदाहरण देता हूँ सर। यहाँ की महायुति सरकार ने महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना शुरू की जी। अभी उस योजना को कंटिन्यू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास फंड की कमी है सर। महाराष्ट्र सरकार लाडली बहन योजना इंप्लीमेंट करने के लिए अभी सफर कर रही है। तो उन्होंने उसमें क्या किया सर, शेड्यूल कास्ट की जितनी लाडली बहन है उनको शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट, जो सामाजिक न्याय विभाग है, उसका निधि ट्रांसफर करने का काम किया सर। आदिवासी समाज की जो महिलाएं है, जो उसको लाडली बहन योजना का बेनिफिट मिलता है, उनको सरकार ने पैसा नहीं दिया। आदिवासी विकास के डेवलपमेंट के लिए जो विभाग बनाया है उसका फंड डाइवर्ट करने का काम किया है सर। तो मुझे इससे एक बात स्पष्ट है सर कि अगर जाति न्याय जनगणना करोगे तो सारे जाति का और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का आपके पास डेटा आ जाएगा, और उसके आधार पर आप प्लानिंग करके इस समाज को अलग अलग जाति धर्म को न्याय दे, अलग अलग डेवलपमेंट की योजना लेके आने में आपको आसानी हो जाती है, जिसके कारण जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। ये कांग्रेस की मांग थी सर। बट राहुल गांधी जी है किधर? बात यह है, आप भाकरे साहब से पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी 35 टाइम्स इधर चले गए, 23 से 35 विजिट हो गए। पूरे कांग्रेस में यह बातचीत चल रही कि राहुल गांधी जी जब यहाँ रहना चाहिए, यूरोप के ट्रिप में बाहर गए, यूरोप में गए। सुरेश चंद्र राजन जी, पूरे कांग्रेस के रैंक एंड फाइल दुखी है, बोले ये क्या हमारा नेता बाहर ज्यादा रहता है और देश के अंदर कम। किस प्रकार? अब बीजेपी का क्रिटिसिज्म नहीं है, ये कांग्रेस के अंदर के बातें हैं। राजन जी, प्रदीप जी, राहुल जी की और नरेंद्र मोदी जी की तुलना हो ही नहीं सकती। देश का एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने आज तक एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, और क्योंकि वो डरते हैं, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है सर।
लेकिन राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी तो रोज लोगों के बीच में है सर, रोज अलग अलग मुद्दा लेकर, अलग अलग इश्यूज लेके सरकार को सवाल पूछने का जो एक अधिकार है। एज अपोजिशन लीडर सबसे बेहतरीन काम करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और ये इस तरह की बातें करते कि राहुल जी कहाँ है, हम पूछते हैं सिंदूर ऑपरेशन के बाद नरेंद्र मोदी जी कहाँ गायब है, पूरा देश जानना चाहता है। अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन लीडर, एनडीए का पूरा गठबंधन प्रधानमंत्री जी को इन सारे मुद्दों के ऊपर स्पेशल सेशन लेने बागरे साहब प्लीज बोलिए सर, दिस विल गो ऑन एंड ऑन। Hemant Kamble साहब, you know Devendra Fadnavis साहब said 1 trillion economy by 2030, 5 trillion economy 2047, शॉर्ट टर्म प्लान होने का 2029 तक खत्म हो जाएगा। देश का मिड टर्म, महाराष्ट्र का मिड टर्म प्लान जो है 2035 तक कंप्लीट करेंगे और लॉन्ग टर्म 5 जो प्लानिंग है 2047 तक। फडणवीस साहब सर, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है महाराष्ट्र का, उसका मैं टोटल प्लानिंग कर चुका हूं। हेमंत जी नहीं, आपकी इकोनॉमी कितने ट्रिलियन की बनाते हैं इससे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप यहां पर कितने लोगों को रोज देते हो। यहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग, मतलब आप बोल रहे हो कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी इतने तक जाएगी, लेकिन वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिट हम अदानी को, अंबानी को देने वाले हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट को देने वाले हैं या फिर यहाँ पर रोजगार, यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई तो प्रोजेक्ट गुजरात में जा रहा है या यूपी में जा रहा है। वेदांता फॉक्सकॉन महाराष्ट्र में से गया गुजरात, गुजरात से गया यूपी में। अब एयरबस का जो प्रोजेक्ट था वो गया गुजरात में। अब हम कहते हैं कि भाई 8,000 करोड़ का हम नागपुर में हेलीकॉप्टर का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। देखिए आप कितने ट्रिलियन की आपकी इकोनॉमी है। देखिए हम तो यहाँ पर तो हमारे देश का कहा जाता है 5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो जाएगी, लेकिन जीडीपी में हम कहां पर है आप ये भी देखिए ना। हमने यहां पर कैपिटा इनकम में हम 197 में कहां पर खड़े हैं, 148। और जहां पर बिलियनर की जो बात कहते हैं कि वर्ल्ड के जो जितने बिलियनर हैं उसमें एक नंबर पर है यूएस, यूनाइटेड स्टेट, सेकंड नंबर पर चाइना और 3 नंबर पर है इंडिया। लेकिन पर कैपिटा इनकम में हम 145। तो ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस दिखता है ना। तो आपकी इकोनॉमी का क्या लेकर जाते हो और जो कॉमन पब्लिक है या कॉमन इंसान है उसको बेनिफिट क्या होता है। आपकी इकोनॉमी से हमें क्या फर्क पड़ता है। नॉर्मल पब्लिक को जिन लोगों को देखकर आप वोट मांगते हो, आप लोगों को कहते हो कि हमें पावर दीजिए। आपने क्या किया था 2014 में, कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा, आता कुठे है महाराष्ट्र माझा, केवढा फरक पडला है, कितना फर्क पड़ा है जी, आपके कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। आपने ब्रिजेस बनाए जी, आपने मेट्रो ट्रेन बनाई, आप वहां पर कोस्टल रोड, लेकिन ट्रैफिक में फर्क पड़ रहा है नहीं, एक्सीडेंट तो हो रहे। यहाँ पर ट्रेन में मुंबई देखिए, मुंबई के क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। आज मुंबई देखिए, पूरा मुंबई तुम्बई हो गए, पूरी मुंबई में फ्लड है। आप अगर शिवसेना को ब्लेम करेंगे तो शिवसेना के साथ आप भी थे 25 साल। तो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, बीजेपी हो या शिवसेना हो, पिछले 25 सालों में ये सब ने अलट पलट कर राज किया है मुंबई या महाराष्ट्र पे। तो यहाँ पर किसी को चांस नहीं कुछ बात करने का। तो ये इकोनॉमी की बात छोड़िए, मैं कहता हूं कि हमारे जो पिछड़े इलाके जैसे मराठवाड़ा है, विदर्भ है, वहां पर आप क्या देते हो, वहां के नौजवान के हाथ को काम क्या देते हो। आपकी इकोनॉमी कितने की हमें क्या फर्क पड़ता है। आपकी इकोनॉमी की 30 ट्रिलियन की हो जाए और यहाँ पर लोगों के हाथ में काम नहीं है, तो पर्टिकुलर फैमिलीज को, बिजनेस फैमिलीज को आपको बढ़ाना है और वो आपको ट्रिलियन में दिखाना है। भाई आपको मुबारक। Right, let me go across to Bagre साहब। बागरे साहब, you heard हेमंत कामले साहब and सुरेश चंद्र राजन साहब, क्या कहना चाहेंगे सर इसको लेके आप, प्लीज बोलिए प्लीज। देखिए, मैं हेमंत कामले साहब को ये कहना चाहूँगा कि ये जो गुजरात में उद्योग जा रहे हैं, ये जो फॉल्स नैरेटिव है। आप अभी एफडीआई का आंकड़ा देख लीजिए, 1,64,875 करोड़ जो आया, उसमें से 40% महाराष्ट्र में आया। तो अगर ये गुजरात में जाते थे उद्योग तो एफडीआई तो उधर चले जाते थे। दूसरा ऐसा है कि मैं तो हेमंत कामले साहब और राजन साहब को इनवाइट करना चाहूँगा विदर्भ में। आज विदर्भ का जो विकास हो रहा है, आज मराठवाड़ा में जो उद्योग जा रहे हैं, आप देखिए नागपुर में और विदर्भ में कितने उद्योग आ रहे हैं।
तो मुझे ऐसा कहना है कि जस्ट सेइंग सम समीर जी, ये डिस्टर्ब करना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। आप विदर्भ में जो फैक्ट्रीज लेके आ रहे हैं, लेकिन कितने वहां पर एनवायरमेंट को खत्म कर रहे हो? देखिए हेमंत जी, आप मुझे बताइए, नहीं, आपका विकास अगर आप सीमेंट नागपुर का आइए, विकास आप है, नागपुर आइए, हर जगह पर सबसे ज्यादा forest कंक्रीट का cover विकास करना, विदर्भ इसको में आप विकास मानते हो, तो ऐसे विकास को मैं तो विकास नहीं मानता हूं। जहां तक इस देश की पहचान थी कृषि प्रधान देश, आप हमने क्या किया है उसको? आप हेमंत अगर जी, आप मन से आके देखिए, मन से ना विदर्भ में कृषि की भी मन से क्रांति हो आप रही मेरे है। से एग्री हो जाओगे, आज लेकिन देवेंद्र आपका जी पार्टी का फडणवीस एजेंडा जो आपको है, बात करना है, जो विदर्भ आपको उसको आगे मराठवाड़ा का चलाना है। जो ड्राउट ये है, सीमेंट का विकास है जिसके तो लिए इतने बाढ़ आ रही है। अरे ये जो हेमंत जी, आप नेचुरल सुनिए ना, कैलेमिटीज आप है उसके लिए सुनिए बाढ़ है, इस पर हेमंत कंट्रोल जी, करिए। आप आपके पार्टी बजट के पढ़िए, कितने लोग हैं जो यहाँ आप पर बजट पढ़िए खनन काम हेमंत में जी, है? बजट पढ़िए। नदी जोड़ प्रकल्प जो है वो विदर्भ मराठवाड़ा के लिए, उसके वो कोई कंक्रीट का प्रकल्प नहीं है, वो इरिगेशन का प्रकल्प है। उसमें देवेंद्र जी ने 1 लाख करोड़ की प्रोविजन किया है। जल युक्त शिवार कोई कंक्रीट का प्रपोजल नहीं है, वो इसके लिए है, मतलब खेती के लिए, पानी के लिए। तो आप देखिए, बैलेंस डेवलपमेंट हो रही है, हर जगह डेवलपमेंट बैलेंस हो रही है। आज विदर्भ का जो विकास हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल विकास भी हो रहा है और एग्रीकल्चर का विकास भी हो रहा है। आज जो किसानों की आत्महत्या सबसे ज्यादा जो विदर्भ से आती थी, आप देखिए जब ये नदी जोड़ प्रकल्प हो जाएगा तो किसान भी खुशहाल हो जाएगा। तो मेरा ऐसा कहना है, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म मत करिए। यस, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज टू बी एड्रेस। हम तो Sir, I have a question. सब इशू सॉल्व कर दिए। सर, एक छोटा सा सवाल है मेरा, 2027 एक छोटा सवाल है मेरा समीर बागरे साहब, आई होप यू डोंट माइंड। सर, व्हाट इज हैपनिंग इज, आई एग्री विद यू, लॉट ऑफ वेरी हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स आर कमिंग टू महाराष्ट्र, दे आर कमिंग टू यूपी, दे आर कमिंग टू गुजरात, Tamil Nadu by the way is not lagging behind. Tamil Nadu is getting a hell of a lot of FDI, absolutely true. So but these are very high profile projects. जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मोस मिसाइल बन रहा है अपना कहाँ, यूपी में, ठीक है सर। एप्पल के फोन्स बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा बाकी ऑलमोस्ट 55% ऑफ मोबाइल फोन्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन उत्तर प्रदेश। उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वेरी हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स, बट दीज डू नॉट क्रिएट मास एम्प्लॉयमेंट सर, दीज आर वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट्स। और जैसे कोस्टल रोड है, सच पूरी बात करें सर, सॉरी, जैसे कोस्टल रोड है, मैं मुंबई की बात करता हूं, जैसे मेट्रो है सर, यू हार्डली सी एनी वर्कर्स वर्किंग देयर, दे आर ऑल बीइंग डन बाय मशीन्स। एम्प्लॉयमेंट कहाँ है सर? आप मुझे ये बताइए ना, वो जो बेचारा गरीब आदमी है, लेबरर जो है, उसको उसका भला कब होगा, वो बताओ ना सर बागरे साहब, प्लीज गो अहेड। सर मुझे बताइए, जो हाई टिकट एक कोई भी इंडस्ट्री आती है तो उसके पीछे सर 200 300 एंसिलरी इंडस्ट्री आती है, उसमें एसएमईज उद्योग रहते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ, नागपुर में महिंद्रा का प्लांट है, तो आज वहां पर 160 छोटे उद्योग महिंद्रा के प्लांट पे है। नागपुर में सोलर एक्सप्लोजिव का प्लांट है जो आज इंडिया के लिए ड्रोन्स बना रहा है, तो उसके इतने एंसिलरी इंडस्ट्री। सर मुझे ऐसा लगता है, इवन मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो या इसमें एजेंसीज काम करती है, और आज आप बताइए इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो रहे तो ऐसे ही खड़े हो रहे क्या विदाउट जॉब क्रिएशन? हाईवेज बन रहे, इतने मेट्रो के काम हो रहे सर, विदाउट मैन पावर नो वर्क कैन हैपन। आप मशीन्स और रोबोट से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, इट हैज टू बी ड्रिवन बाय मैन पावर। और आप मुझे और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हो, you can ask any developer including real estate or infrastructure, they are facing a crunch of labor force. There is a huge scarcity of labor force in all these industries. So in my opinion, the perfect combination of development and employment is happening. और ये जो आप है, ये रियल आंकड़े रिजर्व बैंक के डेटाबेस में, क्लेम डेटाबेस में है जी है, कि जहां पर कितनी एम्प्लॉयमेंट की I didn't want to quote those. I didn't want to quote those. राजीव जी, मेरा एक सवाल है समीर जी से, प्लीज एक सवाल पूछ सकता हूं मैं? प्लीज गो अहेड सर। देखिए कैसे है ना कि मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। जब 1991 में हमने गेट साइन किया मनमोहन जी के नेतृत्व में, लेकिन उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को। कैसे कि वो 1997 में जो पावर में आ गए 13 दिन के लिए, फिर 13 महीने के लिए, फिर उसके बाद उनके बाद पावर आ गई। अब देखिए कैसे ने जो एंसिलरीज की बात करते हैं ना समीर जी, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूं, जितने भी एंसिलरीज वाले जितने भी हम कंपोनेंट्स करते हैं, ज्यादा इंपोर्ट होते हैं। हमारी पॉलिसी क्या थी? हमारी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी क्या थी, और हम क्या कर रहे हैं? यहां पर जितने भी जो भी प्रोडक्ट, पहले यहां पर मैं ऑटोमोबाइल्स की बात करता हूं,
डीसीएम देव, हेमंत जी 160 यूनिट्स है महिंद्रा जनरल के मोटर्स की नागपुर गाड़ी में। आ गई। जी इनके पार्ट जो तो लोकलाइज कर रहे थे, कितने पार्ट आज चाकंड में जितने कंपनियां थी, छोटी छोटी कंपनियां थी, बंद पड़ गई। या मुंबई हेमंत में जी जितने PLI एंसरिज के स्कीम्स या वजह से ऑटो पार्ट्स इतना के जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। हिंदुस्तान में हो अब रहा है। ट्रेड होता है, चाइना से इंपोर्ट होता है। आपने पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया, जो भी अभी हमारा जो पहलगाम में, आपने बैन किया किसको? तुर्कमेनिस्तान को। आपने चाइना को बैन करने की बात क्यों नहीं की, जबकि सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से होता है। आज ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री आप पकड़िए, सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो होता है वो चाइना से होता है। अब यहां पर छोटे जो है 4 लाख से ज्यादा जो हमारे छोटे जो ये है जो उद्योजक है इंडस्ट्री से, वो प्रॉब्लम में है। उनके लिए कुछ सोचिए। ये छोटे छोटे जो बिजनेस हाउसेस है बंद हो रहे, इनके लिए सोचिए। आपने कितनी इन्वेस्टमेंट लाई, यहां पर कितने लोगों को रोजगार दिया। आप क्या वहां पर डाउस में जाते कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हो, 1 लाख 1.5 लाख करोड़ के, यहां पर अपने हमेशा करते हो कि भाई इतने एग्रीमेंट हो गए, इतने हम बिजनेस लेके, लेकिन रोजगार कितना पैदा हुआ, कहां गए इतने इन्वेस्टमेंट? हर साल हमारे जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जाते हैं दावोस में जाके, फिर वो मिनिस्टर कोई भी रहने दो, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हो, चीफ मिनिस्टर मिस्टर उद्धव ठाकरे हो, फिर उनके साथ आदित्य ठाकरे जाते थे, अब देवेंद्र जी जाते हैं दावोस में, सब जाके कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज के नाम नहीं पता नहीं होता। जबकि हमें पता क्या चलता है, वेदांता भाग गया गोवा, अपना गुजरात से भाग गया अभी उत्तर प्रदेश। ऐसे कितने हैं? उसमें से 4.5 तो लाख ये बात आप छोड़िए, छोटे जो है हमारे मिडिल सेगमेंट के जो इंडस्ट्री है पूरी तरह खतरे में है। आप अपने पार्टी को ये कंसर्न कि बड़े प्रॉब्लम में है वो लोग। अरे हेमंत कामले जी, सुरेश चंद्र राजन जी, राजू जी मुझे जी बोलिए, बागरे साहब बोलिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। आई एम कमिंग टू यू ओनली। कहना है हेमंत जी, हर चीज में आप पेसिमिस्टिक मत रहिए। देवेंद्र जी ने जो डावोस में एग्रीमेंट साइन किए एमओयू 16.5 लाख करोड़, जबरदस्त, उसमें से 5 से 5.5 लाख करोड़ के काम भी शुरू हो गए। विदर्भ में बहुत काम चालू हो गया, बाकी जगह मराठवाड़ा हो, पूना हो, सर एक छोटा सवाल पूछ सकता हूं? सर एक छोटा सवाल पूछूं आपसे? की बात कर रहे थे, उसमें आज महिंद्रा जो आपका मैं एग्जांपल देता हूं, 160 यूनिट छोटे यूनिट्स एमएसएमई के यूनिट्स है, वो महिंद्रा के बेसिस पे चलते हैं। ठीक है, आज चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा है धीरे धीरे कम हो रहा है, कम नहीं हो रहा है बागरे साहब, यही इंडिया अलायंस का एलिगेशन है। कांग्रेस से लेके अखिलेश यादव से लेके अभी हेमंत कामले जी जो बोल रहे हैं पूरे इंडियन मार्केट इज फ्लड विद चाइनीज गुड्स। सेमीकंडक्टर राजू जी हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं। सरदार वल्लभ भाई का जो स्टैचू था हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ा। विदाउट टेकिंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स, आप किस मेक इन इंडिया की बात करते हो? सर बागरे साहब और सुरेश चंद्र राजन जी और हेमंत कामले जी, मेरी एक छोटी सी शिकायत है आपसे, आप तीनों लोगों से। सर हम लोग गणपति तो यहीं बनाते थे ना सर, आज की तारीख तो मेड इन चाइना गणपति आ रहे हैं सर। आई एम नॉट जोकिंग, बट सर ऑल द क्रिस्टल गणपतिज, ऑल द क्रिस्टल ग्लास गणपतिज, ऑल द रेयर अर्थ मेटल गणपतिज, सर दे आर कमिंग फ्रॉम चाइना। सर क्या है सर, मतलब ये एटलीस्ट वी कैन प्रोटेक्ट आवर आर्टिजन्स, जो हमारे जो बेचारे यहाँ पे शिल्पकार हैं उनको तो प्रोटेक्ट करना चाहिए सर हमें। वी कैन एटलीस्ट स्टॉप दैट इंपोर्ट। ऑल द लाइट्स जो फेरी लाइट्स होती हैं, बाय द वे क्रिसमस की जो लाइट्स होती हैं, दिवाली की जो लाइट्स होती हैं, अपनी न्यू ईयर की जो लाइट्स होती हैं, वो सारी मेड इन चाइना है सर, और बिल्कुल चाइनीज माल है। वो एक बार चलती है उसके बाद अगले दिन बंद हो जाती है, विच इज क्वाइट ट्रू, लेकिन आती वहां से। कुछ बोलना चाह रहे थे आप? हाँ सुरेश चंद्र राजन, लास्ट वर्ड टू यू, बोलिए सर। राजू जी, मैं समीर जी का ये उन्होंने जो बात रखी कि जलयुक्त शिवार योजना के माध्यम से अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। आपको मालूम होगा जलयुक्त शिवार योजना में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, जिस योजना में 4000 से ज्यादा कंप्लेंट्स आई थी सर, और उसकी हमने कांग्रेस पार्टी ने एसआईटी के मार्फत उसकी इंक्वायरी करने की मांग की थी। उसके साथ साथ सर, वैसा मुझे बात करने दीजिए, मैं कभी मैं आपके बीच में बात नहीं किया, आप मुझे बात करने दीजिए। गलत फैक्ट्स मत कोट कीजिए ना राजू जी, इनको चुप करिए। नहीं कोई बात नहीं सर, आप बोलिए प्लीज। और दूसरी बात है कि जल सिंचन योजना के बारे में तो इनका जो बात कर रहे हैं उसका तो मुझे हंसी आती है इनके ऊपर। जल सिंचन विभाग में आपने देखा होगा इतना अच्छा काम हुआ कि इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उस योजना के 70,000 करोड़ के घोटाले को सार्वजनिक रूप से बात रखना पड़ा।
सर जी, इसमें मोटा मोटी ये है कि जब ये विदर्भ डेवलपमेंट की बात करते हैं, मराठवाड़ा रीजन की डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं मराठवाड़ा रीजन से आता हूं सर, मुझे मालूम है वहां का हाल क्या है। आज भी मराठवाड़ा में कई ऐसे जगह है जहाँ पे पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है सर, रास्ते नहीं है, वहां पे लोग बहुत ही रोजगार नहीं है, खेती के लिए पानी नहीं है सर। और ये बात करते हैं कि मराठवाड़ा में हम लोग विकास कर रहे हैं सर। ये लोग विकास कहाँ करते हैं? जहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं, वो अपने अपने मतदार संघ में अपने अपने विभाग में पैसा लेके जाते हैं। और मोटा मोटी ये है कि मराठवाड़ा को उस तरह का रिप्रेजेंटेशन महाराष्ट्र सरकार में मिलता नहीं है सर, जिसके कारण आज so we'll discuss that at some other point of time. तुलना में जी। मराठवाड़ा हमेशा बैकवर्ड रहा है सर। तो मुझे ऐसा लगता है जी, बागरे साहब बोलिए सर, आई रियली हैव टू एंड द शो, वी हैव गॉन ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। बागरे साहब बोलिए प्लीज। मैं राजन जी को ये बोलना चाहूंगा कि वो अपने पार्टी का रिपोर्ट कार्ड बता रहे थे, महाराष्ट्र में 65 साल उनकी सरकार थी, तो अगर मराठवाड़ा पिछड़ा रहा या विदर्भ पिछड़ा रहा तो उसका मेजर ब्लेम आपके पास जाता है। सुनिए, और मराठवाड़ा में अभी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, मराठवाड़ा में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, आप देखिए 23,000 करोड़ के अरे सर एक सेकंड, सुरेश चंद्र राजन जी आप बोलिए, अब उनको बोलने देना प्लीज, बोलिए ना प्लीज। बागरे साहब प्लीज, बड़े आराम से बातचीत हो रही है, क्या इसमें टेंशन क्या है, बोलिए ना बागरे साहब। जो भी इन्होंने इरिगेशन या जो भी किया था, उस वक्त सरकार किसकी थी राजन जी? सरकार तो कांग्रेस पार्टी की थी, सरकार शरद पवार साहब की थी। तो आपको आंसर देना चाहिए कि आप ऐसे लोगों के साथ बैठे क्यों नहीं करते? आपको आंसर देना चाहिए। सरकार हमारी थी, हमने घोटाला किया तो उसकी इंक्वायरी आपकी सरकार ने की। सर वन स्मॉल थिंग जेंटलमैन, इसके ऊपर तो खैर बहुत लंबी बात हो सकती है। हेमंत कामले साहब, सुरेश चंद्र राजन जी, समीर बागरे साहब, as of the latest figures, sir, the trade deficit between India and China is over $100 billion per year. $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है सर। हम उनसे 114 बिलियन डॉलर्स का सामान इंपोर्ट करते हैं और उनको सिर्फ $12 बिलियन हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं सर। $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट है सर। वी हैव टू ब्रिंग दिस ट्रेड डेफिसिट डाउन, वी हैव टू डू इट सर। जो आत्मनिर्भर भारत की आपने बात करी है ना, हम सब आपके साथ हैं। आई एम श्योर हेमंत कामले जी विल बी विद यू, सुरेश चंद्र राजन जी विल ऑल्सो बी विद यू। आप सर यहां के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो यहाँ के शिल्पकार हैं, हमारे जो क्राफ्ट्समैन हैं, हमारे जो छोटे छोटे उद्योग वाले हैं, जैसे अभी भी हेमंत कामले साहब ने बताया, ये तो सर मुझको खुद को पर्सनल एक्सपीरियंस है। दिल्ली में जब मारुति उद्योग शुरू हुआ था ना सर, आसपास इतनी बड़ी एंसिलरी इंडस्ट्री शुरू हो गई, पीपल मेड हेल ऑफ अ लॉट ऑफ मनी ऑल अराउंड। दे हैव ऑल डिसअपीयर्ड नाउ। नोबडी इज taking anything stuff made in India, it's all coming in kit form from abroad, सीधा वहीं से आ रहा है सर। फोर्ड, आप फोर्ड की बात कर लो, आप होंडा की बात कर लो, आप टोयोटा की बात कर लो, तकरीबन सभी का बाहर से ही आ रहा है, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। सो वी रियली हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, बहुत गंभीरता से सर इसको लेना पड़ेगा। एंड द क्वालिटी एंड द इफेक्टिव प्राइस इज अगेन डिस्ट्रॉइंग आवर लोकल मार्केट्स। All right, gentlemen, thank you very much. It's been a great pleasure talking to you as always. समीर बागरे साहब बहुत धन्यवाद आपका। हेमंत कामले जी आपका भी बहुत धन्यवाद। सुरेश चंद्र राजन जी, thank you very much sir. नमस्कार। Thank you much. Thank you gentlemen, great pleasure as always. नमस्कार। Well, the fact remains, Pradeep ji, the fact remains there are certain facts which cannot be denied. The fact is China is producing goods at a very low rate, at a very low price, which are of better quality than what we produce over here. Better quality, and I think it is come with such a nice kit that all you have to do is pushing it out there with everything, everything, all services provided in that particular kit. You don't have to get screws from another person or you get some other component from other person. Everything intact. So why can't we just copy it? That's all that I'm saying. The Chinese have copied it from the Americans. We should copy it from the Chinese. But I think China is way ahead the whole world. I mean, it's not only India. India. तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास, हमारे पास अभी आज की तारीख में कोई चॉइस नहीं है। चाइना को छोड़ के कोई। तो मेरा सर ये कहना है कि चाइना के साथ आज की तारीख में अगर आपका ट्रेड जो है $119 बिलियन का है, $119 बिलियन, जिसमें ट्रेड डेफिसिट जो है वो $101 बिलियन का है, उसको बढ़ा दीजिए, 250-300 बिलियन डॉलर कर दीजिए, so that the Chinese depend on us. सीधी बात है, so that the Chinese economy depends on sales in India. Good morning. उसके बाद you will have enough leverage on the Chinese. It's as simple as that. So there are lots and lots of ways that you can work things around. But the fact remains, मराठवाड़ा में
प्रदीप जी आपको याद होगा अभी भी गुर्बत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खानदेश में अभी भी हालत खराब है। आपको याद होगा हमारे शाहजहां अथर साहब हमारे साथ थे, आपको याद होगा शोलापुर की वो बात कर रहे थे और उन्होंने ये बताया था 11 दिन में एक बार पानी आता है। Exactly. 11 दिन में एक बार पानी आता है सर, मतलब But we also know this. I think this Chief Minister Devendra Fadnavis has great plans. At least he's got a pipeline of how to get water in Marathwada, in every region of Marathwada. He's got a very systematic plan out there. Do you know something? It's only he just has to implement it, and it takes some time. I think with him, sir, the connection of he's river the only plans. person who's got a focus where target. सर वो growth is concerned. नदी जोड़ योजना है ना सर, उसके ऊपर मेरी I have my grave doubts, very frankly, because that is going to cause an environmental disaster at some point of time or the other. You have to have a proper irrigation plan suited to that particular region. एक ज़माने में मराठवाड़ा में there were lots and lots of wells, there were lots and lots of underground aquifers, there were lots and lots of lakes. उन सब चीज़ों को आप रिजर्व कीजिए, उनको पुनर्जीवित कीजिए। अगर इकट्ठे आप इतना ज़्यादा पानी वहाँ पर डाल देंगे, the entire cropping pattern, the entire soil will be completely destroyed. I'm surprised why nobody has briefed the Chief Minister on that. There is enough water. All you need to do is to conserve it properly and then activate it. It's a long process. It will take 3 years, 4 years, 5 years. But you got to start somewhere. But joining of the rivers is not a solution. Let me tell you this. Because that is going to lead to problems which are completely unforeseen and may be catastrophic to the environment later on. And may be catastrophic to your crops. Exactly what happened in Vidarbha. Vidarbha में प्रदीप जी लोग दाल उगाया करते थे, कपास उगाया करते थे और दाल उगाया करते थे और छोटी मोटी और चीजें उगाया करते थे। वहां पर थोड़ी बहुत रेंज बहुत अच्छी हुई, उन्होंने क्या किया, शुगर केन उगाना शुरू कर दिया, गन्ना उगाना शुरू कर दिया विदर्भ में प्रदीप जी। बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ, द रेन्स फेल्ड एज यूजुअल, एवरी 3 years द रेन्स फेल इन विदर्भ, सत्यानाश हो गया। विदर्भ हैज नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दैट। तो ये सब चीजें But I think the Jal Jeevan Mission and the Jal Yukta Shivir, where Fadnavis ji and Prime Minister Modi has, pushing this particular projects, it is more than interconnecting of rivers. It is providing household, because sole intention of saying that every house is self-sufficient in water. So, you know what, Pradeep ji? It seems to be, they had a terrible break when Uddhav Thackeray had become the CM for 2.5 years. All projects did take a break, and now it's प्रदीप जी इसमें एक छोटी सी चीज है, आपके सामने, सबके सामने, पूरे सारे हिंदुस्तानियों के सामने एक किताब है। डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, विकास कैसा होना चाहिए, आप कभी महात्मा गांधी की किताब पढ़ लें। महात्मा गांधी ने क्या कहा, वो रास्ता अगर आप अपनाएंगे तो आपकी जो नॉर्मल प्रॉब्लम जो है, साधारणता जो प्रॉब्लम होती है, समस्याएं सारी, उनका विकास हो जाएगा। वो क्या है, यूज द विलेज एज अ यूनिट। एक गांव जो है उसकी प्रॉब्लम उस गांव में ही सॉल्व की जाए, इंक्लूडिंग रन ऑफ द रिवर डैम्स, including generating electricity right there. We've done it. I've done it myself. I worked with Bankar Roy in SWRC, Social Work Research Center in Telonia, where the idea was we will not take anything from outside villages at all. Let's do it right here, and we did. आज भी Telonia is a model village in Rajasthan, जहां पर कभी बिजली नहीं जाती है, पानी की किल्लत कभी नहीं होती है, लोग अपना कपड़ा खुद वहीं पे काटते हैं और उस कपड़े को फिर बेचते हैं। कुर्ताज मेड इन SWRC Telonia are sold in Europe. मेरा ये कहना है कि we have to apply our mind. सीधी सादी बात है। क्या है, very unfortunately, as I've been saying all along, जहां पर बहुत बड़ा बजट नहीं होता प्रदीप जी, वहां पर सरकार का इंटरेस्ट नहीं होता। सीधी सादी बात है। सरकार का इंटरेस्ट जाने ना एमएलए का इंटरेस्ट होता है, ना पंचायत का इंटरेस्ट होता है, ना ही कॉर्पोरेटर का इंटरेस्ट होता है, ना ही मंत्री जी का इंटरेस्ट होता है। सीधी बात है सर। जहां पर बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं, बहुत बड़ा डैम बनाना है, 20,000 करोड़ की योजना, 2 लाख करोड़ की योजना, 3 लाख करोड़ की योजना, वहां पर देखिए बिल्कुल जैसे शहद के ऊपर मक्खियां आती है, वैसे ही हर एक का इंटरेस्ट जाग उठता है। जो सस्ता, सुंदर और टिकाऊ और परमानेंट सोल्यूशन होता है, उसको लेकर के प्रदीप जी, but then that's the way we are. That's the way we are. Right? That's it. That's all we've got for you. और भैया अगर आपने जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। growing channel of the nation now. थैंक यू सो मच। आप लोगों ने घंटी बजा दी इस बार, जब मैंने पहले कहा था तो आपने घंटी नहीं बजाई थी।
इस बार आप लोगों ने घंटी बजा दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक भी कर सकते हैं, अगर आप डिसलाइक करें तो शौक से करें। एंड वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन फेसबुक, वी आर देयर on Twitter, which is now X, and we are also there on Instagram, Facebook, X, we are there everywhere. You can, reach us over there. Well, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद।